رات گہری تھی اور تاریخ اپنے سب سے سیاہ لمحے سے گزر چکی تھی۔ کربلا کی ریت ابھی تک گرم تھی، جیسے ہر ذرہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے لہو کی گواہی دے رہا ہو۔ ہوا میں آج بھی وہی چیخیں گونجتی تھیں جنہیں وقت نے دبانے کی کوشش تو کی مگر مٹا نہ سکا۔ یزید کی سلطنت جشن منا رہی تھی اور مدینہ، کوفہ، بغداد سب پر ایک عجیب بے حسی طاری تھی، مگر ایک شخص تھا جس کا سینہ دہکتا ہوا انگارہ تھا، ایک شخص جس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی منظر زندہ تھا، حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر اور ظالموں کی ہنسی۔ وہ شخص مختار ابن ابی عبید ثقفی تھا۔ دنیا سمجھتی تھی کہ کربلا ختم ہو چکی، لیکن مختار کے لیے اصل جنگ اب شروع ہونے والی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وقت آنے والا ہے، ایک ایسا وقت جب کوفہ کے بازاروں میں قاتل چھپ نہ سکیں گے اور ان کے نام تاریخ سے نہیں زمین سے مٹ جائیں گے۔ یہ انتقام کا سفر تھا، صرف ایک خاندان کا نہیں، صرف ایک قبیلے کا نہیں، بلکہ حق کا باطل سے حساب چکانے کا سفر۔ کربلا ایک المیہ تھا، لیکن اس کے بعد جو ہونا تھا وہ عدل کا طوفان تھا، اور اس طوفان کا نام تھا مختار ثقفی۔ کربلا کے خون آلود سانحے کے بعد کوفہ کی باغ ڈور عمرو بن حریث کے ہاتھ میں تھی، جو ابن زیاد کا قائم مقام تھا، جبکہ خود عبید اللہ بن زیاد بصرے میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھا۔ سن 64 ہجری میں جب یزید کی حکومت کمزور پڑنے لگی اور اموی اقتدار کا ڈھانچہ ہلنے لگا تو اہل کوفہ نے عمرو بن حریث کو معزول کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔ یزید کی موت کے بعد حجاز اور عراق کی قیادت بھی انہی کے ہاتھ میں آ گئی۔ یزید کی موت کے 6 ماہ بعد وسط رمضان میں مختار ثقفی کوفہ پہنچا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر حضرت ابن زبیر نے عبداللہ ابن یزید انصاری کو کوفہ کا حاکم اور ابراہیم بن محمد بن طلحہ کو خراج کا والی مقرر کیا اور دونوں کوفہ پہنچ گئے۔ مختار نے آتے ہی اہل کوفہ کو ایک نئی دعوت دینا شروع کی، قاتلان امام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی دعوت۔ وہ کہتا تھا، میں محمد بن حنفیہ کا مقرر کردہ وکیل اور امین بن کر آیا ہوں۔ وہ کوفہ کی گلیوں، محلوں اور مسجدوں میں جاتا، اہل بیت کے مصائب بیان کرتا، کربلا کی ہولناکیاں یاد دلاتا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں لوگوں کے دل نرم کر دیتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی تحریک نے جڑ پکڑ لی اور لوگ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ جب یہ حال عبداللہ ابن یزید انصاری کو بتایا گیا تو وہ بولا، یہ محض بدگمانی ہے، مختار تو امام حسین کا خون کا مطالبہ کر رہا ہے، خدا اس پر رحم کرے۔ بہتر ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر کھل کر ابن زیاد اور دیگر قاتلین حسین سے جنگ کرے۔ اگر ابن زیاد اس کے سامنے آیا تو میں ہر طرح مختار کی مدد کروں گا۔ لیکن چند روز بعد کوفہ کے کچھ بااثر سرداروں نے اسے خبردار کیا کہ مختار خود تم پر شہر کے اندر حملہ کرنے والا ہے، بہتر ہے اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ مختار کو قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد مختار نے اپنے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میری سفارش کریں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے سفارش لکھ بھیجی اور یوں مختار رہا تو کر دیا گیا، مگر اس شرط پر کہ وہ دوبارہ کوئی سازش یا بغاوت نہیں کرے گا، اور اگر کیا تو کعبے کے پاس جا کر 1000 اونٹ قربان کرے گا اور اپنے تمام غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دے گا۔ رہا ہوتے ہی مختار نے اپنے ایک دوست سے کہا، ان بے وقوفوں کو خدا کی مار، سمجھتے ہیں میں حلف نبھاؤں گا، یہ قسم توڑنا اسے پورا کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اونٹوں کی قربانی اور غلاموں کی آزادی کو میں تھوک جتنی اہمیت نہیں دیتا۔ میرا مقصد صرف ایک ہے، یہ عظیم مشن مکمل ہو جائے، چاہے میرے پاس ایک غلام نہ بچے، مجھے پرواہ نہیں۔ دوسری جانب اس کے پیروکاروں کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسی دوران عبداللہ بن متی کو نیا گورنر کوفہ مقرر کیا گیا۔ جیسے ہی وہ کوفہ پہنچا، اسے تنبیہ کی گئی کہ مختار پھر طاقت جمع کر رہا ہے اور شہر پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اسے قید کر لینا ہی بہتر ہے۔ ابن متی نے مختار کو بلایا، مگر مختار نے بیماری کا بہانہ کر کے گرفت سے بچ لیا، اور بیچارہ ابن متی کیا جانتا تھا کہ جلد ہی اسی شہر میں مختار کا پرچم بلند ہونے والا ہے اور اس کی اپنی حکومت مٹی میں ملنے والی ہے۔ جب کوفہ کے حالات تیزی سے بدل رہے تھے، مختار کے پاس خبر آئی کہ شہر کے بڑے بڑے قبیلوں نے چپکے سے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عبداللہ بن متی کے ساتھ مل کر مختار کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے۔ کسی نے مشورہ دیا، اگر ابراہیم بن مالک اشتر ساتھ آ جائے تو ہماری قوت کئی گنا بڑھ جائے گی۔ وہ خود بہادر ہے، اس کا خاندان معزز ہے اور اس کے قبیلے کی تعداد بھی بہت ہے۔
یہ بات مختار کو پسند آئی۔ اس نے فوراً اپنے آدمی ابراہیم کے پاس بھیجے۔ وہ لوگ ابراہیم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے والد کے تعلقات، ان کی قربت اور وفاداری کا تذکرہ کرتے رہے تاکہ اس کے دل میں اہل بیت کے لیے جذبات مزید ابھریں۔ ابراہیم نے جواب دیا، میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے خون کا انتقام لینے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ قیادت میرے ہاتھ میں ہو۔ جواب میں کہا گیا، آپ اس منصب کے یقیناً اہل ہیں، لیکن مختار ہمارے پاس حضرت محمد بن حنیفہ یعنی مہدی کی طرف سے آیا ہے، وہی اس مشن پر مامور کیا گیا ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس حالت میں ہم کسی اور کو والی امر نہیں بنا سکتے۔ ابراہیم خاموش ہو گیا۔ یہ وفد ناکام لوٹ آیا۔ اب مختار نے وہ قدم اٹھایا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اس نے امام محمد بن حنیفہ کے نام سے ایک جعلی خط تیار کیا۔ 3 دن کے بعد وہ خود 10-12 آدمیوں کے ساتھ ابراہیم کے گھر پہنچا اور کہا، یہ دیکھیے، یہ امیر المؤمنین محمد بن علی یعنی حضرت محمد بن حنیفہ کا خط ہے، وہی مہدی جو انبیاء کرام کے بعد روئے زمین پر سب سے افضل انسان ہیں۔ وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس مشن میں ہماری مدد کریں۔ ابراہیم نے خط کھولا، اس پر لکھا تھا، من جانب محمد المہدی بنام ابراہیم بن مالک اشتر سلام علیکم، اور آگے لکھا تھا، میں نے اپنے وزیر اور امین یعنی مختار کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے دشمنوں سے جنگ کرے اور اہل بیت کے خون کا بدلہ لے۔ تم بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے قبیلے کو بھی ساتھ لاؤ۔ اگر تم نے میری دعوت قبول کی تو تمہیں بہت فضیلت نصیب ہوگی۔ ابراہیم نے خط پڑھ کر کہا، محمد ابن حنیفہ نے ہمیشہ اپنے خطوط میں اپنا نام محمد بن علی لکھا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس مرتبہ انہوں نے اپنے والد کے نام کی جگہ اپنا لقب مہدی کیوں لکھا۔ مختار فوراً بولا، وہ زمانہ اور تھا، آج زمانہ بدل چکا ہے، حالات مختلف ہیں۔ ابراہیم نے پوچھا، تو اس بات کی کیا دلیل کہ یہ خط حقیقتاً انہی کا ہے؟ اس پر مختار کے سارے ساتھی یک زبان ہو کر کہنے لگے، ہم سب گواہ ہیں، یہ خط خود حضرت محمد مہدی ہی نے لکھا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم کو اب پسپائی کی کوئی سبیل نہیں رہی۔ وہ ادب سے صدر مجلس سے ہٹ کر نیچے بیٹھ گیا، مختار کو صدر میں بٹھایا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر اس نے اپنے قبیلے اور متعلقین کو بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو مشورہ ہوا اور آخر فیصلہ طے پایا کہ 4 ربیع الاول 66 ہجری جمعرات کی رات خروج کیا جائے گا۔ یہی وہ رات تھی جس نے کوفہ کی تاریخ بدل دی۔ عبداللہ بن مطیع کو معلوم ہو چکا تھا کہ مختار کسی بھی لمحے حملہ کر سکتا ہے، چنانچہ اس نے شہر کے بااثر سرداروں اور شرفائے کوفہ کی قیادت میں فوج اور پولیس کو ہر طرف پھیلا دیا اور پورے شہر کی سخت ناکہ بندی کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ مختار کے آدمیوں میں خوف پیدا ہو اور وہ خروج سے باز آ جائیں، مگر جو لوگ کربلا کا بدلہ لینے کا عزم کر چکے ہوں انہیں روکنے کے لیے ایسی رکاوٹیں کب کارآمد ہو سکتی تھیں۔ اسی دوران مختار نے نواحِ کوفہ کے ایک مقام پر اپنی تمام عسکری تیاریاں مکمل کر لیں۔ یوم موعود کی صبح فجر طلوع ہونے تک وہ اپنی فوج کی ترتیب اور صف بندی سے فارغ ہو گیا۔ طلوع آفتاب سے پہلے ہی دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پورا دن تلواروں، نیزوں اور تکبیر کی آوازوں سے گونجتا رہا۔ آخرکار حکومت کی فوج پسپا ہونے لگی اور شام تک مختار نے قصر عمارت کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ پورے 3 دن جاری رہا۔ جب ابن مطیع کی قوت مزاحمت مکمل طور پر ٹوٹ چکی تو اس کے ایک قابل افسر شیس بن ربعی نے کہا، اب اپنے اور اپنے ساتھیوں کی فکر کریں، نہ ہم دوسروں کو بچا سکتے ہیں نہ خود محفوظ رہ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ مختار سے امان طلب کر لی جائے۔ ابن مطیع نے سختی سے جواب دیا، مجھے اس شخص سے امان مانگنے میں نفرت ہے جبکہ حجاز اور بصرہ ابھی بھی امیر المؤمنین عبداللہ بن زبیر کے زیر نگیں ہیں۔ شیس نے کہا، اگر یہی خیال ہے تو بہتر ہے خاموشی سے نکل جائیں، کوفے ہی میں کسی معتبر شخص کے گھر پناہ لیں اور پھر موقع پا کر مکہ معظمہ چلے جائیں۔ کوفے کے دیگر اشراف نے بھی یہی مشورہ دیا۔ ابن مطیع فرار، قصر کا دروازہ کھل گیا۔ بالآخر ابن مطیع رات کے اندھیرے میں قصر سے نکل کر ابو موسیٰ کے گھر جا چھپا۔ اس کے نکل جانے کے بعد قصر کے محافظوں نے دروازہ کھولا اور ابراہیم بن اشتر کو کہا، ہمیں امان دی جائے۔ ابراہیم نے جواب دیا، تم سب کو امان ہے۔
यूं वो बाहर निकल आए और मुख्तार के हाथ पर बैत कर ली। मुख्तार कसरे इमारत में दाखिल हुआ और वहीं रात गुजारी। सुबह के वक्त शुरफाए कूफा मस्जिद और कसर के दरवाजे पर उससे मिलने आए और उसके हाथ पर बैत की, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल और खूने अहले बैत के इंतकाम पर। मुख्तार ने उसके बाद कूफे के तमाम अशराफ के साथ निहायत हुस्न सलूक का मुजाहरा किया ताकि शहर के दिलों में उसकी हुकूमत मजबूती से बैठ जाए। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद अक्सर फातहीन के रवैये बदल जाते हैं, मगर मुख्तार सकफ़ी उन लोगों में से नहीं था। जब उसे इत्तला मिली कि अब्दुल्ला बिन मुती, जिसने उसके खिलाफ महाज आराई की थी, इस वक्त अबू मूसा अशअरी के घर में रूपोश है, तो मुख्तार के चेहरे पर लम्हा भर को खामोशी छा गई। लेकिन उसके बाद जो कदम उसने उठाया वो उसकी शख्सियत की बुलंदी का सबूत था। शाम होते ही उसने 1 लाख दिरहम इब्ने मुती के पास भेज दिए और कहला भेजा, ये तुम्हारी ज़रूरियात के लिए हैं। मुझे मालूम है कि तंगदस्ती ने तुम्हें छुपकर बैठने पर मजबूर कर रखा है। हालांकि हालात के तकाजे कुछ और थे, लेकिन मुख्तार ने पुराने ताल्लुक, पुरानी दोस्ती और इंसानी शराफत को तरजीह दी। फिर जब वो कूफा के बैतुल माल तक पहुंचा तो वहां 90 लाख दिरहम मौजूद थे। उसने फ़ौरन वो रकम उन लोगों में तकसीम कर दी जिन्होंने मुहासरा इब्ने मुती के दौरान उसका साथ दिया था। 503 बहादुर सिपाहियों को 500-500 दिरहम और 6000 मुजाहिदीन को 200-200 दिरहम। ये फयाजी उस मुख्तार का असल चेहरा है जिसे अक्सर लोग सिर्फ इंतकाम लेने वाला समझते हैं, जबकि हकीकत में वो अदल, फराख दली और उसूल का आदमी था। इब्ने मुती की शिकस्त के बाद मुख्तार सकफ़ी का परचम इराक से आगे बुलंद हुआ। हिजाज और बसरा को छोड़कर वो तकरीबन तमाम वो खित्ते अपने मातहत ले आया जो उस वक्त अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ज़ेरे नगी थे। ये मुख्तार की ज़िंदगी का वो लम्हा था जब उसने अपनी आंखों से अपना उरूज और इक़्तिदार देख लिया और इस्लामी दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उसके हुक्म के आगे सर झुका चुका था। उसने अपने बाएतमाद सरदारों को मुख्तलिफ इलाकों की जिम्मेदारियां दीं। अब्दुल्ला बिन हारिस, आर्मीनिया का गवर्नर, अब्दुर्रहमान बिन सईद, मौसल का गवर्नर, इसहाक बिन मसूद, मदाइन की हुकूमत, और इसी तरह दीगर इलाकों की बागडोर लायक, बाहिम्मत और आजमूदा सरदारों के सुपुर्द कर दी। ये तंजीम, ये नज़्म ज़ब्त और ये वसी आलमी नज़्म नस्क बताता है कि मुख्तार सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक मुदब्बिर हुक्मरान भी था। ये बात तारीख की एक अजीब गरा है कि जिस अब्दुल्ला बिन मुती को आज मुख्तार ने शिकस्त देकर भी इज्जत और माली मदद दी, वही अपने मुती वो शख्स था जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रास्ते में मुलाकात की थी जब आप कूफा की तरफ जा रहे थे। उसने कहा था, ए फर्जंदे रसूल, मैं आपको हुर्मत इस्लाम की कसम देता हूँ, आप कूफा जाने के इरादे से बाज आ जाएं, बनु उमैया आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने मिन्नतें की, दरख्वास्तें की और दिल से चाहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस सफ़र से रुक जाएं, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। यही वो तारीख़ी पस मंज़र है जिसके बाद मुख्तार ने उस शख्स के साथ भी बदले का नहीं, इंसानियत का मामला किया। दुलैबिल्ला इब्न ज़ियाद वही शकी अज़ली है जिसने हज़रत इमाम हुसैन का उस वक्त तक पीछा न छोड़ा जब तक कि इसकी खूना शामी ने उन्हें रियाज़ फिरदौस में न भेज दिया। इसने अहले बैत अतहार पर जिनकी मोहब्बत जुज़े ईमान है वो जुल्म तोड़े कि जिनको सुनकर दिल पाश पाश हो जाता है। यजीदी दौर के आगाज़ में ये शख्स बसरा का हाकिम था और चूंकि यजीद इससे नाखुश था और इसको बसरा की हुकूमत से बरतरफ कर देना चाहता था, लेकिन जब इमाम हुसैन ने अपने हमजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना फरमाया, हज़ारहा आदमियों ने मुस्लिम के हाथ पर इमाम हुसैन की बैत की, तो यजीद ने जनाब मुस्लिम की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए बसरा के साथ कूफा की हुकूमत भी इब्ने ज़ियाद को तफवीज़ कर दी और लिखा कि मैं तुमसे खुश हूँ, तुम कूफा जाकर वहाँ के हालात की इस्लाह करो। इस शख्स ने कूफा जाकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील का नक्श वजूद जिस बेदर्दी और शहाकत के साथ सफ़ाए हस्ती से महव किया और जिस सफ़ाकी के साथ हज़रत मुस्लिम के मेज़बान हानी बिन उर्वा की जान ली, उसके बयान से तारीख़ की रूह लरस जाती है। इस शख्स ने अपने सिपा सलार इब्ने साद को लिखा था कि हुसैन और उनके अहले बैत के पास दरियाए फरात का पानी न पहुँचने दो।
इस हुक्म के मुजब 500 सवारों की एक जमीयत दरिया और इमाम हुसैन के क़याम गाह के दरमियान हायल करके पानी पीने में मुज़ाहमत की। यही वो जालिम था जिसने उमर बिन साद को हज़रत इमाम हुसैन और उसके अहले बैत की जान सताने का हुक्म दिया था। यही वो शख्स है जिसने हज़रत इमाम हुसैन के कासिदों की निहायत संग दिली के साथ जान ले ली थी। इसकी तफसील ये है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की इत्तला मिलने से पहले इमाम हुसैन ने कूफा जाते हुए में कैस के हाथ अहले कूफा के नाम एक ख़त रवाना फरमाया। कैस कादिसिया पहुँचे तो हुसैन बिन नमैर ने, जो रास्ता में इमाम हुसैन की मुज़ाहमत के लिए यजीदी फ़ौजें लिए पड़ा था, उनको गिरफ्तार करके कूफा भेज दिया। इब्न ज़ियाद की नापाक सीरत और खबीज़ ज़मीर से भला किसी को दरगुजर की कहाँ उम्मीद हो सकती थी। उसने कैस को हुक्म दिया कि कसरे अमारत की बुलंद छत पर चढ़ जाओ और माज़अल्लाह कज़ाब इब्न कज़ाब हुसैन इब्न अली पर सबो शतम करो। कैस ऊपर चढ़ गए और खालिक कुरदार की हम्दो सना के बाद कहा, खुदा की कसम, हुसैन इब्न अली रूए ज़मीन की तमाम मखलूक में बेहतरीन और अफजल तरीन इंसान है। आप मखतूमा जहाँ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा बिन्ते रसूलुल्लाह के साहबज़ादा हैं। उनकी दावत हक़ को लब्बैक कहो। मैं इनसे हाजर के मकाम पर जुदा हुआ था। इसके बाद उन्होंने हज़रत हुसैन की जगह इब्न ज़ियाद और इसके बाप पर लानत भेजी और हज़रत अली मुर्तज़ा के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि इस शख्स को कसर के नीचे फेंक दो। कसर इमारत निहायत बुलंद था, उनको नीचे धकेल दिया गया। ज़मीन पर पहुंचकर जिस्म पाश पाश हो गया और आंखें बंद करते ही हुराने जन्नत की गोद में पहुंच गए। हज़रत इमाम हुसैन को हनूज इस सानिहा का इल्म नहीं था कि कैस की रवानगी के बाद अपने रज़ाई भाई अब्दुल्ला को हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास रवाना फरमा दिया। इमाम हुसैन को इस वक्त तक ये भी मालूम न था कि मुस्लिम शहीद होकर जन्नतुल फिरदौस में पहुंच चुके हैं। हुसैन बिन नमैर ने अब्दुल्ला को भी गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। इब्न ज़ियाद ने कैस की तरह उनको भी हुक्म दिया कि कसरे अमारत पर चढ़ जाओ और कज़ाब इब्न कज़ाब हुसैन इब्न अली पर लानत करो। इसके बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारे मुतालिक क्या फैसला करना चाहिए। वो ऊपर चढ़ गए और हुसैन के कुदूम का ऐलान करके इब्न ज़ियाद पर लानत करने लगे। वो भी इब्न ज़ियाद के हुक्म से कसर से गिरा दिए गए। उनकी हड्डियां चिकनाचूर हो गईं। अभी कुछ रमक बाकी थी कि यजीदी आगे बढ़ा और उनको ज़बह करके वास्ले हक कर दिया। इब्न ज़ियाद की स्याह दिली का अंदाज़ा इन जाँ घुसल वाक़यात से भी हो सकता है जो हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के बाद रूनुमा हुए। जब शोहदाए करबला की जांसतानी के बाद उमर बिन साद हज़रत इमाम हुसैन के अहले बैत को इब्न ज़ियाद के पास कूफा ले चला तो उनको इमाम हुसैन और दूसरे शोहदा की पामाल लाशों के पास से ले गुजारा। ख़वातीन अहले बैत इस दर्दनाक मंजर को देखकर ज़ब्त न कर सकी और आहो फरियाद की सदाएं बुलंद हो गईं। हज़रत इमाम हुसैन की ख्वाहर मोहतरमा जनाब ज़ैनब ने रोकर कहा, ए मोहम्मद, आप पर आसमान के फरिश्तों का दुरूद व सलाम। देखिए बेचारे हुसैन इस चट्टेल मैदान में खून में लथड़े हुए आज़ा बरीदा पड़े हैं। हर बंद टुकड़े टुकड़े है। आपकी बेटियां कैदी हैं और आपकी औलाद मकतूल बेकफन पड़ी है। तेज हवाएं इन पर खाक उड़ा रही हैं। रावी कहता है कि ऐसा दोस्त या दुश्मन कोई न था जो इन दर्द अंगेज नोहा से अशबार न हो गया हो। इसके बाद तमाम शुहदा के सर काटे गए। कुल 72 सर थे। शिमर इब्न ज़िल रोशन, अमरो इब्न हिजाज और कैस इब्न अशरफ, ये तमाम सर इब्न ज़ियाद के पास ले गए। हुमैद बिन मुस्लिम रिवायत करता है कि हुसैन का सर इब्न ज़ियाद के रूबरू रखा गया। मजलिस हाजरीन से लबरेज थी। इब्न ज़ियाद के हाथ में एक छड़ी थी। छड़ी आपके लबे मुबारक पर मारने लगा। जब उसने बार बार यही हरकत की तो हज़रत ज़ैद इब्न अरकम सहाबी चिल्ला उठे, इन लबों से अपनी छड़ी हटा ले। कसम खुदा की मेरी इन दोनों आंखों ने देखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लबे मुबारक इन होठों पर रखते थे और इनका बोसा लेते थे। ये कहकर वो ज़ारो कितार रोने लगे। इब्न ज़ियाद बगोला होकर कहने लगा, खुदा तेरी आंखों को रुलाए। वल्लाह अगर तू बूढ़ा होकर सठिया ना गया होता तो अभी तेरी गर्दन मार देता। हज़रत ज़ैद इब्न अरकम ये कहते हुए मजलिस से चले गए, ए अरब, आज के बाद से तुम गुलाम हो। तुमने इब्न फातिमा को मुहम्मल किया, इब्न मरजाना को हाकिम मान लिया। वो तुम्हारे नेक इंसान मक्तल करता रहा और तुम्हारे शरीरों को मुकर्रब बनाता रहा। तुमने जिल्लत पसंद कर ली, खुदा उन्हें मारे जो जिल्लत कबूल करते हैं। बाज़ रिवायतों में ये वाक़या खुद यजीद की तरफ से मंसूब है, मगर सही यही है कि इब्न ज़ियाद ने छड़ी लगाई थी। जब अहले बैत का तबाह हाल काफिला इब्न ज़ियाद के सामने पेश हुआ तो उस वक्त हज़रत ज़ैनब ने निहायत ही हकीर लिबास पहना हुआ था। वो पहचानी नहीं जाती थी।
उनकी कनीजें उन्हें अपने बीच में लिए थीं। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, ये कौन बैठी है? हजरत ज़ैनब ने उसका कुछ जवाब न दिया। 3 मरतबा यही सवाल किया मगर वो खामोश रहीं। आखिर उनकी एक कनीज ने कहा कि ये जनाब ज़ैनब बिनते फातिमा है। इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि उस खुदाए बरतर का शुक्र है जिसने तुम्हें रुसवा और गारत करके तुम्हारे खानदान को बट्टा लगाया। हजरत ज़ैनब ने जवाब दिया कि तमाम तर हम्दो सिताइश उस ज़ाते बरतर के लिए है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमें इज्जत बख्शी और हमें पाको साफ किया, न कि तू जैसा कहता है। हकीकत यह है कि फासिक रुसवा होते हैं और फाजिरों के नाम को बट्टा लगता है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुमने देखा कि अल्लाह ताला ने तेरे खानदान से क्या सलूक किया? हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि इल्मे खुदावंदी में उनकी शहादत मुकद्दर थी, इसलिए वो अपने मक्तल में पहुंचे, लेकिन अनकरीब रब्बे जलील तुझे और उन्हें एक जगह मुजतमा करके इंसाफ करेगा। ये सुनकर इब्ने ज़ियाद बर्फ रोख्ता हो गया और आलम गैज़ में कहने लगा कि खुदा ने तेरे सरकश सरदार और तेरे अहले बैत के नाफरमान बागियों की तरफ से मेरा कलेजा ठंडा कर दिया। ये सुनकर हजरत ज़ैनब अपने तईं संभाल न सकी, बेख्तियार रो पड़ी और कहा, तूने मेरे भाई और दूसरे खराबतदारों को शहीद कर डाला, मेरा खानदान मिटा डाला, मेरी शाखें काटी और मेरी जड़ उखाड़ दी। अगर इन्हीं बातों से तेरा कलेजा ठंडा होता है तो वाकई तू अपनी मुराद पाई। इब्ने ज़ियाद ने मुस्कुराकर कहा, यह शुजाअत है? तेरे बाप भी शायर और शुजा था। हजरत ज़ैनब ने कहा, औरत को शुजाअत से क्या सरोकार? मैं जो कुछ कह रही हूँ ये रंज गम की आग है जो मेरे मजरूह दिल में सुलग रही है। हजरत ज़ैनुल आबिदीन अली इब्ने हुसैन अलील होने की वजह से कत्ल से बच गए थे। जब इब्ने ज़ियाद ने उनको देखा तो पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? फरमाया, अली इब्ने हुसैन। कहने लगा, क्या अल्लाह ने अली इब्ने हुसैन को हलाक नहीं किया? जनाब ज़ैनुल आबिदीन ने उसका कुछ जवाब न दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? फरमाया, मेरा एक बड़ा भाई था, उसका नाम भी अली था, अली अकबर। लोगों ने उसे शहीद कर डाला। इब्ने ज़ियाद बोला, नहीं, यूं कहो कि खुदा ने उसे हलाक किया। अली खामोश हो गए। इब्ने ज़ियाद ने पूछा, क्यों नहीं बोलते? इस पर ज़ैनुल आबिदीन ने यह आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है, खुदा ही मौत के वक्त जाएं लेता है, कोई भी उसके आज़्न के बगैर मर नहीं सकता। इस पर इब्ने ज़ियाद चिल्लाया, तुझे खुदा मारे, तू भी उन्हीं में से है। फिर इसके बाद इब्ने ज़ियाद ने चाहा इन्हें भी कत्ल कर डाले, लेकिन ज़ैनब बेकरार होकर चीख उठी, मैं तुझे खुदा का वास्ता देती हूँ, अगर तू मोमिन है और इस लड़के को ज़रूर ही कत्ल करना चाहता है तो मुझे इसके साथ मार डालो। इसके बाद इज्तिमा के लिए मुनादी कराई गई। लोग जामे मस्जिद में जमा हुए। इब्ने ज़ियाद ने मिंबर पर चढ़कर गौहर अफशानी की। हर किस्म की हम्दो सना का मुस्तहिक वो परवरदिगार आलम है जिसने हक़ और अहले हक़ को ज़ेर दस्त किया और अमीरुल मोमिनीन यजीद और उसकी जमात की औन व नुसरत फरमाई और कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब की जमात को गारत किया। ये सुनकर एक नेक नहाद मुसलमान अब्दुल्ला इब्ने अफ़ीफ़ अज़दी उठे और उस बदनहाद को मुखातिब करके कहने लगे, ए इब्ने मरजाना। मरजाना इब्ने ज़ियाद की माँ का नाम था। कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब तू तो है और तेरा बाप और वो जिसने तुझे गवर्नर बनाया। ए इब्ने मरजाना, क्या तू अंबिया की औलाद को कत्ल करता है और साथ ही सिद्दीक़ों जैसा कलाम करता है? इब्ने ज़ियाद ने कहा, इसे मेरे पास पकड़ लाओ। इब्ने ज़ियाद ने इस जुर्म ना आशना को जुर्म हक़ गोई में नहंग शमशीर के हवाले कर दिया और हुक्म दिया कि इसकी नाश को लटका दिया जाए। चुनाचे नाश अथर को वहीं सहने मस्जिद में लटका दिया गया। फिर इमाम हुसैन के सर मुबारक की तमाम शहर में तशहीर की गई और कोई जगह ऐसी न थी जहां इसको फिराया न गया हो। जब उमर इब्ने साद ने हज़रत इमाम हुसैन के हादसा शहादत के बाद कूफा को मुराजात किया तो इब्ने ज़ियाद ने उससे कहा कि उमर, मुझे वो ख़त दे दो जो मैंने तुमको हुसैन के कत्ल के मुताल्लिक़ लिखा था। उसने कहा, मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील कर दी थी। उसने कहा, वो चिट्ठी वापस दे दो। उमर ने कहा, वो गुम हो चुकी है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, नहीं, ज़रूर दे दो। कहा, वो तिल्फ हो गई थी। इब्ने ज़ियाद ने कहा, वो तुम्हें ज़रूर देनी पड़ेगी। उमर ने कहा, वो करबला ही में छूट गई थी और अगर वो चिट्ठी मदीना पहुंच गई तो कम से कम मैं तो माजूर समझा जाऊंगा। इसके बाद उमर इब्ने साद ने इब्ने ज़ियाद से कहा, खुदा की कसम, मैंने तुमको हुसैन के बारे में बहुत समझाया था और नसीहत की थी, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। इस गुफ्तगू के वक्त उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का भाई उस्मान इब्ने ज़ियाद भी मौजूद था। वो कहने लगा कि कत्ल से तो कहीं ये बेहतर था कि ज़ियाद की नस्ल के हर मर्द की नाक में क़यामत तक ग़ुलामी की नकेल पड़ी रहती।
اور مغیرہ کی روایت ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ابن زیاد کی ماں مرجانہ نے اپنے بیٹے عبید اللہ سے کہا، او خبیث، تو نے ابن وصی اللہ کو قتل کر دیا ہے، تجھے جہنم سے نکل کر کبھی جنت کی شکل تک دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت حسین کا سر زخرین قیس کے ہاتھ یزید کے پاس دمشق بھیج دیا۔ غاز بن ربیعہ کہتا ہے کہ جس وقت زخو بن ملقیس پہنچا، میں یزید کے پاس بیٹھا تھا۔ یزید نے اس سے سوال کیا، کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا، فتح و نصرت کی بشارت لایا ہوں۔ حسین بن علی اپنے 18 اہل بیت اور 60 حامیوں کے ساتھ ہم تک پہنچے۔ ہم نے انہیں بڑھ کر روکا اور مطالبہ کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں اور لڑائی لڑیں۔ انہوں نے اطاعت پر لڑائی کو ترجیح دی، چنانچہ ہم نے طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان پر حلہ بول دیا۔ اب تلواریں ان کے سروں پر پڑنے لگیں تو وہ ہر طرف بھاگنے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں چھپنے لگے، جس طرح کبوتر باز سے بھاگ کر اور چھپتے ہیں۔ پھر ہم نے ان سب کا قلع قمع کر دیا۔ اس وقت ان کے لاشیں برہنہ پڑے ہیں، ان کے کپڑے خون سے تربتر ہیں، ان کے رخسار غبار سے میلے ہو رہے ہیں، ان کے جسم دھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں اور گدھ کی خوراک بن گئے ہیں۔ یزید کے غلام قاسم بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کے سر یزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے یہ شعر پڑھا، تلواریں ایسوں کے سر پھاڑتی ہیں جو ہمیں عزیز ہیں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے۔ پھر کہا، واللہ اے حسین، اگر میں وہاں ہوتا تو تجھے ہرگز مقتل نہ کرتا۔ حضرت حسین کے سر کے بعد ابن زیاد نے اہل بیت کو بھی دمشق روانہ کر دیا۔ شمر ابن ذیلجوشن اور محضر بن تغلبہ اس قافلے کے سردار تھے۔ امام زین العابدین راستہ بھر خاموش رہے، کسی سے ایک لفظ نہیں کہا۔ یزید کے دروازے پر پہنچ کر محضر چلایا، میں امیر المومنین کے پاس معاذ اللہ فاجر کو لایا ہوں۔ یہ سن کر یزید یہ کہنے لگا، محضر کی ماں سے زیادہ کمینہ اور شریر بچہ کسی عورت نے نہیں جنا۔ پھر یزید نے شام کے سرداروں کو اپنی مجلس میں بلا لیا، اہل بیت کو بھی بلایا اور امام زین العابدین سے مخاطب ہوا، اے علی، تمہارے ہی باپ نے میرا راستہ کاٹا، میرا حق بھلایا، میری حکومت چھیننا چاہی، اس پر خدا نے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم دیکھ چکے ہو۔ امام زین العابدین نے جواب میں یہ آیت پڑھی، ترجمہ، تمہارے لیے کوئی ایسی مصیبت نہیں جو پہلے سے لکھی نہ ہو، یہ خدا کے لیے بالکل آسان ہے، یہ اس لیے کہ نقصان پر تم افسوس نہ کرو اور فائدہ پر مغرور نہ ہو، خدا مغروروں اور فخر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ جواب یزید کو ناگوار ہوا، اس نے چاہا اپنے بیٹے خالد سے جواب دلوائے، مگر خالد کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ تب یزید نے خالد سے کہا، کہتا کیوں نہیں، جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اپنے ہاتھوں آتی ہے، اور بہت سی غلطیاں تو خدا معاف کر دیتا ہے۔ اس اثنا میں اس حادثہ کی خبر یزید کے گھر میں عورتوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ ہند بن عبداللہ یزید کی بیوی نے منہ پر نقاب ڈالا اور باہر آ کر یزید سے کہا، امیر المؤمنین، کیا حسین ابن فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آیا ہے؟ یزید نے کہا، ہاں، تم خوب رو لو، بین کرو، رسول اللہ کے نواسے اور قریش کے اصیل پر ماتم کرو۔ اس کے بعد یزید نے حاضرین مجلس سے کہا، تم جانتے ہو یہ سب کس بات کا نتیجہ ہے؟ یہ حسین کی اجتہادی غلطی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے سوچا کہ میرا باپ یزید کے باپ سے افضل ہے، میری ماں یزید کی ماں سے افضل ہے، میرے نانا یزید کے نانا سے افضل ہیں، اور میں خود بھی یزید سے افضل ہوں، اس لیے حکومت کا بھی یزید سے زیادہ مستحق ہوں۔ حالانکہ ان کا یہ سمجھنا کہ ان کے والد میرے والد سے افضل تھے صحیح نہیں۔ علی اور معاویہ نے باہم جھگڑا کیا اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوا۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ ان کی ماں میری ماں سے افضل تھی، تو بلا شبہ یہ ٹھیک ہے، فاطمہ بنت رسول اللہ میری ماں سے کہیں افضل ہیں۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا کہ ان کے نانا میرے نانا سے افضل تھے، تو قسم خدا کی کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا رسول اللہ سے افضل نہیں، بلکہ رسول اللہ کے برابر کسی انسان کو نہیں سمجھتا۔ حسین نے اجتہادی غلطی کی۔ پھر اہل بیت کی خاتونیں یزید کے محل میں پہنچا دی گئیں۔ خاندان معاویہ کی عورتوں نے انہیں اس حال میں دیکھا تو بے اختیار رونے پیٹنے لگیں۔ جب 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر مکہ معظمہ میں بیعت ہوئی تو انہوں نے بعض بنو امیہ کو ارض حجاز سے شام کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ انہی مخرجین میں عبد الملک کا باپ مروان ابن حکم بھی تھا۔ مروان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جا کر عبداللہ ابن زبیر سے بیعت کرے۔ ابن زیاد کو مروان کے عزم بیعت کی اطلاع ہوئی تو مروان سے کہنے لگا، میں تمہارے اس رویے پر سخت شرم محسوس کر رہا ہوں۔
मरवान ने कहा कि अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा है। गर्ज 64 हिजरी में मरवान के हाथ पर बैत हो गई। इसके बाद मरवान ने इब्ने ज़ियाद को एक लश्कर देकर मोसुल की तरफ रवाना किया। मोसुल में उस वक्त मुख्तार का आमिल अब्दुर्रहमान इब्ने सईद था। वो मुकाबला की ताब न लाकर तिकरीत चला गया और मुख्तार को अपनी हजीमत और पसपाई की इत्तला दे दी। मुख्तार ने यजीद इब्ने अंस असदी को 3000 मुंतखब और जंग आजमूदा फौज के साथ इब्ने ज़ियाद के मुकाबले पर भेजा। उसने तौसन हिम्मत की बाग उठाई और बादो बर्क की तरह मोसुल जा पहुंचा। जब इब्ने ज़ियाद को इसकी आमद का इल्म हुआ तो इसने 3000 के मुकाबले में 6000 फौज भेज दी। लेकिन यजीद बिन अंस यहाँ पहुँचते ही नागहा मर्ज मौत में गिरफ्तार हुआ और इसका मर्ज दम बदम तरक्की करने लगा। जब नकारा जंग पर चोट पड़ी तो यजीद बिन अंस शिद्दत मर्ज के बावजूद ऐसी हालत में गधे पर सवार होकर निकला कि उसे आदमी थामे हुए थे। यजीद ने अपनी फौज को आरास्ता किया और साथ ही वसीयत कर दी कि अगर मैं मर जाऊं तो वर्का इब्ने अज़ब तुम्हारा अमीर होगा। लड़ाई के दौरान में कभी तो वो शिद्दत मर्ज की वजह से गश खा जाता था और कभी होश में आ जाता था। आखिरकार अहले शाम को हजीमत हुई और मुख्तार की फौज ने उसके पड़ाव पर कब्जा कर लिया। यजीद बिन अंस उसी रोज बवक्त मगरिब इस सराय फानी से कूच कर गया। इस हजीमत के बाद इब्ने ज़ियाद 80,000 फौज लेकर मुकाबले के लिए बढ़ा। ये देखकर मुख्तार की फतहमंद फौज ने अपनी आफियत इसमें देखी कि कूफा को वापस चली जाए। जब मुख्तार को इन हालात की इत्तला हुई तो उसने इब्राहिम बिन अश्तर को 7000 सवारों की जमीयत के साथ मोसल रवाना किया और यह भी समझा दिया कि यजीद बिन अंस की फौज को देखो तो इसे अपनी क़यादत में वापस ले जाना। इब्राहिम अपनी फौज को यह वाक़यात जहन नशीन कराते हुए रवाना हुआ कि इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले बैत के साथ क्या बर्ताव किया था, उनको किस तरह कत्ल किया और उनका पानी बंद किया। ये दर्द अंगेज हालात सुना सुनाकर अपने आदमियों को इब्ने ज़ियाद के खिलाफ जोश फिलाता रहा। जब वहां पहुंचे और मुकाबला हुआ तो इब्ने ज़ियाद को बावजूद बहुत बड़ी फौज रखने के हजीमत हुई। इस हजीमत की एक बड़ी वजह यह थी कि उमैर बिन हब्बाब नाम इब्ने ज़ियाद का एक फौजी सरदार जो दरपर्दा इब्ने ज़ियाद का दुश्मन था, अपनी सिपाह को बददिल करने के लिए लड़ते लड़ते भाग खड़ा हुआ। नतीजा ये हुआ कि शामी फौज ने राह फरार इख्तियार की। मुख्तार की फौज ने शामियों का ताक़ुब किया। वो लोग भागते वक्त आलम बदहवासी में इस कसरत से नहर में गर्क हो गए कि मुग़रिकीन की तादाद मकतूलीन से बढ़ गई। फातहीन ने माले गनीमत से खूब हाथ रंगे और अपने मुफ्तकिर को वापस आए। इब्राहिम अपने फौजी अफसरों से कहने लगा कि मैंने अभी एक शख्स को एक झंडे के नीचे नहरें खाजिर के किनारे अपने हाथ से कत्ल किया है। इसका पता लगाओ, इसके कपड़े बहुत मुअत्तर पाओगे। दोनों हाथ मशरिक की तरफ और पांव मगरिब की जानिब होंगे। इसे तलाश किया गया तो मालूम हुआ कि वो इब्ने ज़ियाद बदनिहात था जिसने इब्राहिम की ज़रब से हलाक होकर जिंदगी की रुसवाई से नजात पाई। इसका सर काटकर बाकी जिस्म को नजर आतिश कर दिया गया। इब्राहिम ने नामा फतह के साथ इब्ने ज़ियाद और इसके रुआसा के सर मुख्तार के पास भेज दिए। जब ये कूफा के कसरे इमारत में पड़े थे तो एक पतला सा सांप वहां आया। उसने घूम घूम कर सरों को देखा। आखिर इब्ने ज़ियाद के मुंह में घुसकर नाक में निकला, फिर नाक से दाखिल होकर मुंह में सर निकाला। उसने कई बार ऐसा ही किया। इस वाक़े को मुहद्दिस तिरमिज़ी ने अपनी किताब जामिया में नकल किया है। ये उमर हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास का नाखलफ बेटा था जो हज़रत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़द्र सहाबी और अशरा मुबश्शरा में दाखिल थे। हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास वही बुज़ुर्ग हैं जिन्हें फ़ख्र कौनैन सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामू के मुअज़्ज़ज़ लक़ब से याद फरमाया करते थे। और इसकी वजह ये थी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मादर मोहतरमा कबीला बनु ज़ोहरा से थीं और हज़रत साद बिन अबी वक्कास भी इसी कबीला के चश्म चिराग थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि एक मरतबा जनाब साद इब्ने अबी वक्कास बारगाह नबूवत में हाजिर हुए। हज़रत खैरुल अनाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद मेरे मामू हैं और फिर हज़रत साद के लिए इससे बढ़कर और क्या सादत हो सकती है। क्या आपने यहाँ तक फरमा दिया कि अगर किसी दूसरे शख्स का मामू भी ऐसा हो जैसा कि मेरा है तो वो इसे पेश करे। तिरमिज़ी और हज़रत साद इब्ने अबी वक्कास की एक फ़जीलत यह है कि वो साबिक़ीन इस्लाम में से तीसरे थे। सही बुखारी यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को छोड़कर उनसे पहले सिर्फ एक ही सहाबी शरफ़ ईमान से मुशर्रफ़ हुए थे। लेकिन खुदाए बरतर की शान बेनियाज़ी मुलाहिज़ा हो कि इतने जलीलुल क़द्र सहाबी आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा करबला के मार्का में हुज़ूर सरवर आलम के फ़र्जंद के कातिलों का कायद और रहनुमा था। उमर इब्ने साद करबला की यजीदी अफ़वाज का कायद आज़म था। इस तकर्रुर का बाइस ये हुआ कि इब्ने ज़ियाद ने उसे 4000 फ़ौज की कमान देकर
कोहे मस्तजी की तरफ रवाना किया था, जिस पर वीलम ने हमला करके अमल दखल कर लिया था। इब्ने ज़ियाद ने साद को क़ियादत लश्कर के साथ रे की हुकूमत का फरमान भी लिख दिया था। चुनाचे उमर ने अपने लश्कर के साथ कूच करके हम्माम अमीन के मकाम पर डेरे डाल दिए थे, लेकिन हिरमान नसीबी का कमाल देखो कि जब इमाम हुसैन की तशरीफ़ आवरी का गलगला बुलंद हुआ तो इब्ने ज़ियाद ने उमर को बुलाकर कहा कि फ़िलहाल तुम हुसैन का कज़िया निपटा लो, इसको सरअंजाम देने के बाद खिदमत मफूज़ा के लिए चले जाना। उमर ने इमाम हुसैन के मुकाबला पर जाने की माफ़ी चाही। इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि माफ़ी इसी सूरत में मुमकिन है कि रे की हुकूमत का फरमान वापस कर दो। उमर ने कहा, अच्छा मुझे गौर करने के लिए एक दिन की मोहलत दो। चुनाचे उसने अपने अज़ीज़ा व अकारिब और हवा ख्वाहों से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़र्जंद गरामी की तबाही और इस्तेसाल की तरफ कदम उठाना ईमान से हाथ धोना है। उमर इब्ने साद का भाजा मुगीरा कहने लगा, मामू मैं तुमको खुदा का वास्ता देता हूँ कि इमाम हुसैन के मुकाबला पर न जाना। खुदा की कसम, अगर बिलफर्ज तुम्हें सारी कायनात के अम्वाल खजाइन और बादशाहत से भी दस्तबरदार होना पड़े तो भी इब्ने रसूल के खून का धब्बा अपने दामन अमल पर ना लगाना। इससे कतई नज़र हजरत हुसैन तुम्हारे हमजद कुरैशी हैं और सिला रहमी का तकाजा ये है कि हकूक़े कराबत पर चंद रोज़ा दुनियावी अक़दार को कुर्बान कर दो। उमर ने कहा, अच्छा मैं ऐसा ही करूँगा। अब वो रात भर इसी अधेड़ बुन में मसरूफ़ रहा कि दो बातों में से किसको इख्तियार करूँ। उस वक्त मजमून के अशार उसकी ज़बान पर थे। क्या मैं रे की रग़बत दिल से निकाल दूँ या हुसैन के कत्ल में शिरकत करूँ? हुसैन के कत्ल की सज़ा तो ऐसी आग है जिससे बचने के लिए कोई हिजाब नहीं है, और रे की हुकूमत में आँखों की ठंडक है। आखिर सुबह को इब्ने ज़ियाद के पास जाकर कहा कि लोगों ने सुन लिया है कि तुमने मुझे वलायत रे का आमिल मुकर्रर किया है। अगर इसका निफाज कर दो तो बेहतर है, और हुसैन के मुकाबला पर जाने के लिए अशराफ कूफा में से किसी ऐसे शख्स का इंतखाब मुनासिब है जो फ़न महरबा में मुझसे ज़्यादा तजर्बाकार हो। ये कहकर 6 आदमियों के नाम लिए इब्ने ज़ियाद बोला, मैंने इस बारे में तुमसे कोई मशवरा नहीं तलब किया। अगर लश्कर लेकर जाते हो तो जाओ, वरना रे की हुकूमत का फरमान वापस कर दो। उमर कहने लगा, अच्छा मैं जाता हूँ। गर्ज उमर फौज लेकर हजरत हुसैन के मुकाबले में रवाना हुआ और अमीरुल मोमिनीन अली करमल्लाहु वजहू की एक मशहूर पेशनगोई पूरी कर दी। चुनाचे बाज़ सैरीन का बयान है कि एक मर्तबा हजरत अली करमल्लाहु वजहा ने उमर इब्ने साद से कहा था कि अगर तुम कभी ऐसे मुकाम में हो कि तुम्हें जन्नत और दोज़ख में से किसी एक को इख्तियार और इंतखाब करने की नौबत आए तो तुम ज़रूर दोज़ख ही को तरजीह दोगे। जब उमर इब्ने साद ने यजीदी अफवाज की अनाने क़यादत अपने हाथ में ली तो उसके बाद उसने अपनी बातिल परस्ती और हक फरामोशी का मुजाहिरा करने में कोई दकीका फ़रोग़ गज़ाश्त ना किया। चुनाचे मारिका करबला के आगाज़ में सबसे पहले उसने चिल्ले में तीर जोड़कर चलाया और कहा, सब लोग गवाह रहना कि सबसे पहले मैंने ही तीर चलाया है। मुकाम इबरत है कि उमर के बाप हजरत साद बिन अबी वकास तो हस्बे रिवायत कैसिब ने अबी हादिम ताबी हमेशा इस बात पर फख्र किया करते थे कि मैं अरब में सबसे पहला वो शख्स हूँ जिसने राह खुदा में तीर चलाया, बुखारी और मुस्लिम। लेकिन उनके नाबकार बेटे को इस बात पर फख्र है कि उसने फर्जंदे रसूल पर तीर चलाने में सब पर सबकत की। उमर ने इस बातिल बाजी पर इक्तफा नहीं किया कि तीर चलाकर लड़ाई का आगाज कर दिया, बल्कि इसकी फिसाद क़ल्बी के उस वक्त और भी ज्यादा जौहर खुले जब उसने हजरत इमाम मजलूम की जान सितानी के बाद इब्ने ज़ियाद के हुक्म की तामील में अपने लश्कर को खिताब करके बाआवाज़े बुलंद कहा, कौन इस बात पर आमादा है कि हुसैन की तरफ जाए और अपने घोड़े से उसकी लाश को रौंद डाले। चुनांचे 10 सवार गए और उन्होंने अपने घोड़ों के पांव से आपकी नाशे अथर को बहुत बुरी तरह रौंदना शुरू किया, यहाँ तक कि आपके जसद मुबारक की हड्डियां और पसलियां और आज़ा बिल्कुल रेजा रेजा कर डाले। ताजुब है कि उन नाकारों को इस्लामी घरानों में पैदा होने के बावजूद किस कानून, किस अखलाक और कौन सी तहजीब ने इसकी इजाज़त दी थी कि वो हज़रत सैयद शुहदा के जसद अथर के साथ ये सलूक करते। इब्ने ज़ियाद की हलाकत के बाद एक दिन मुख्तार ने अपने हाशिए नशीनों से कहा कि कल मैं एक ऐसे शख्स को हलाक करूंगा जिसके बड़े पाँव, घड़ी हुए आंखें और घनी भवें हैं, और जिसके कत्ल से अहले ईमान और मलाइका मुकर्रबीन खुश होंगे। हाज़रीन मजलिस में से हिशम बिन असवद नामी एक कूफी ताड़ गया कि मुख्तार की मुराद उमर बिन साद से है।
हीशम ने घर जाकर अपने बेटे को ये इतला देने के लिए अपने साथ के पास भेजा कि मुख्तार ने तुम्हारे इस्तेहलाक का तहैया कर लिया है। ये देखकर उमर ने अब्दुल्ला बिन जादा बिन हैरा के पास जाकर मिन्नत समाजत की कि मुख्तार से उसे अमान दिलाओ। मुख्तार अब्दुल्ला बिन जादा का इस बिना पर बहुत एहतराम करता था कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन अली से कराबत थी, यानी वो हज़रत अली की ख्वाहिर मोहतरमा हज़रत उम्मे हानी के पोते थे। अब्दुल्ला ने मुख्तार के पास सिफारिश लिखकर भेजी। मुख्तार की आदत थी कि ऐसी लचकदार और गोल मोल बात कहा करता था कि जिसमें बवक्ते ज़रूरत इनकार करने और दूसरा मफहूम मुराद लेने की बहुत गुंजाइश रहती थी। मुख्तार ने बदी अल्फाज वादा अमान लिख दिया। ये वादा अमान मुख्तार इब्ने अबू अबैद सकफी की जानिब से उमर बिन साद के लिए लिखा जाता है। तुम्हारी जान, तुम्हारे माल, अइज़्ज़ा, अक़रिबा और औलाद को अमान दी जाती है। तुमसे तुम्हारे साबिका अमाल का उस वक्त तक कोई मुआख़ज़ा ना किया जाएगा जब तक तुम हमारे अहकाम की तामील करोगे। मुख्तार इब्ने अबू अबैद ने अल्लाह के सामने ये अहद वासिक किया है कि वो इस अहद अमान का ईफा करेगा बजद इस सूरत के कि कोई हदस नया वाक़या रूनुमा हो। इस्तिस्ना के अरबी अल्फाज ये थे, इन हदसा। इन अल्फाज के मानी बज़ाहिर ये हैं कि मैं इस अमान के अहद को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन चूंकि हदस अरबी ज़बान में खरूज रेह और बेवजू होने को भी कहते हैं, मुख्तार ने मुतज़क्करा सदर तहरीर में हदस से बेवजू होना मुराद लिया था, यानी उसने दिल में अमान नामा को इस अम्र के साथ मशरूत किया था कि वो बेवजू ना हो, लेकिन चूंकि वो इसके बाद बारहा बेवजू होता रहा, इसलिए वादा अमान बहालत रबूद हो गया। दूसरी सुबह को मुख्तार ने उमर को अबू उमरा नामी एक शख्स के हाथ भेजा। मुख्तार ने जागते वक्त अबू उमरा को समझा दिया था कि अगर कोई मौका मिले तो इसको ठिकाने लगा देना। उमर उठा, मगर चलते हुए अपने जुब्बे में अटक कर गिर पड़ा। अबू उमरा ने उस वक्त तलवार का वार करके उसका काम तमाम कर दिया और उसका सर काट कर दारुल इमारत कूफा में मुख्तार के पास भेज दिया। जब हमर का सर मुख्तार के सामने रखा गया तो उस वक्त अमर बिन साद का बेटा हफ्स भी इसके पास बैठा था। मुख्तार ने हफ्स से पूछा, पहचानते हो कि ये सर किसका है? उसने कहा, हाँ, मगर बाप का साया उठ जाने के बाद अब जिंदगी बेलुत्फ है। ये सुनकर मुख्तार ने उसकी भी गर्दन मारने का हुक्म दिया और उसके कटे सर को भी अमर के सर के साथ रखवा दिया। मुख्तार उमर के सर पर हाथ रखकर कहने लगा, ये हुसैन के बदले में, और फिर हफ्स के सर की तरफ इशारा करके बोला, ये अली बिन हुसैन के बदले में। गो इन दोनों से कोई निस्बत नहीं। इसके बाद मुख्तार कसम खाकर कहने लगा कि अगर मैं बनु कुरैश के 100 आदमियों को भी मौत के घाट उतार दूं तो वो सब मिलकर इमाम हुसैन के एक कतरा खून के बराबर भी नहीं हो सकते। अब मुख्तार ने अमर और उसके बेटे का सर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के पास मक्का मौज़मा भिजवा दिया, जो इमाम हुसैन के सोतेले भाई थे, और लिखा कि मैं इमाम हुसैन के कातिलों की फिक्र में हूँ, बाज को कत्ल कर चुका हूँ और दूसरों की तलाश में हूँ। मुख्तार ने कातिलान हुसैन को चुन चुन कर ख़त्म करने का तहिया कर रखा था। इसके बाद बारी आती है शिमर इब्ने ज़िलजोशन की, जिसके बारे में मशहूर है कि उसका मामला इमाम हुसैन के साथ ऐसा था जैसे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल का था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की मुखालिफत में शमर इब्ने ज़ुलजौशन की हैसियत वही थी जो सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत व ईज़ा रसानी में अबू जहल की थी। अगर दोनों के हालात पर गौर किया जाए तो संग दिली और कसावत कल्बी में किसी एक को दूसरे पर तरजीह देना मुश्किल हो जाता है। फ़र्क अगर है तो सिर्फ ये कि अबू जहल कुफ्र के अलमबरदारों में था, जबकि शमर ज़ाहिरन इस्लाम का दावेदार था। बातिन का हाल सिर्फ अल्लामुल ग़यूब जानता है, लेकिन ज़ाहिर में उसके अफ़ाल इस बात के गवाह हैं कि ईमान और इस्लाम से उसका कोई हकीकी ताल्लुक़ न था। शमर के इबरतनाक अंजाम की दास्तान सुनाने से पहले लाजिम है कि हम करबला की उस धरती पर चलें जहां आफताब की तपिश, नेज़ों की चमक और तलवारों की खनक के बीच इंसानियत का सबसे अजीम मार्का बरपा हुआ। वहीं एक बदबख्त भी मौजूद था, शमर इब्ने ज़ुलजौशन, जिसका किरदार जुल्म, संगदिली और खबासत की स्याही से तारीख के औराक पर सब्त है। आइए इस मल्लून के किरदार पर एक नज़र डालें, उससे पहले कि हम उसके इबरतनाक अंजाम की सरगुज़िश्त बयान करें। जंग करबला के आगाज़ से कबल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर इब्न साद को पैगाम भेजा कि वो रात के वक्त आकर तन्हाई में मुलाकात करे। चुनाचे उमर इब्न साद हस्बे इरशाद आया और दोनों के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई।
इसके बाद कई रोज तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उमर इब्न साद के दरमियान मजीद नशिस्तें होती रहीं। इन बातचीत के नतीजे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत पेश फरमाई। नंबर 1, मुझे वापस हज्जाज जाने दिया जाए। नंबर 2, मुझे किसी सरहदी मुहाज पर भेज दिया जाए ताकि मैं दीन की खिदमत और जिहाद में मसरूफ़ रहूं। और नंबर 3, या फिर मुझे यजीद के दरबार दमिश्क भेज दिया जाए ताकि मैं बराह रास्त उससे बात कर लूं। ये वो आखिरी शराइत थीं जिन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कई दिन की बहस व तमहीज़ के बाद पेश फरमाया। उमर इब्न साद इस बात पर मुतमईन था कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद इनमें से किसी एक शर्त को ज़रूर मंजूर कर लेगा। इसी ख्याल के तहत उसने इब्न ज़ियाद को ख़त लिखा कि अल्लाह ने इख्तिलाफ की आग बुझा दी है और सुलह की सूरत पैदा हो गई है। हुसैन ने ये 3 शर्तें पेश की हैं और इनमें से किसी एक को कबूल कर लेने से मामला ख़त्म हो सकता है। जब इमाम हुसैन की पेश करदा शराइत ऐसी चीज़ें थीं जो तुम्हारी खातिर और उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए माकूल नज़र आती थीं, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने वो ख़त पढ़कर खुशी जाहिर की और उमर इब्न साद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये ख़त उसी शख्स का हो सकता है जो अपने अमीर का मुखलिस भी है और अपनी कौम का खैर खा भी है। उसने कहा, मैं इन शराइत को कबूल करता हूँ। बदकिस्मती से उसी मजलिस में शमर इब्न जुलजौशन भी मौजूद था, एक सख्त दिल और बेरहम शख्स। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और इब्न ज़ियाद से मुखातिब होकर बोला कि अगर हुसैन तुम्हारी सरजमीन में हाजिर है और तुम्हारे करीब है तो फिर तुम ये शराइत कैसे मंजूर कर सकते हो? शमर ने कहा, कसम खुदा की, अगर वो यहाँ से वापस चला गया और तुमने उसका हाथ ना पकड़ा तो वो ताकत हासिल कर लेगा और तुम्हें इस बात का बहुत अफसोस होगा। उसने मकाराना अंदाज में कहा कि सारी रात हुसैन और उमर अपने लश्करों के दरमियान दोस्ताना गुफ्तगू में मसरूफ़ रहते हैं। ये बात सुनकर इब्न ज़ियाद का मिजाज बदल गया। इब्न ज़ियाद ने शमर से कहा, अच्छा, तुम ये ख़त लेकर उमर के पास जाओ। अगर उमर मेरी हदायत माने तो उसके अहकामात की पैरवी करो और अगर वो इनकार करे तो तुम ही इस फौज के सिपा सलार बनकर उसका सर मेरे पास भेज दो। इब्न ज़ियाद ने अमर इब्न साद के नाम एक सख्त फरमान भी लिखवा दिया जिसमें कहा गया कि तुम्हें हुसैन के पास इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम उस पर रहम करो या उसकी सिफारिश करो। अगर वो और उसके साथी मेरे हुक्म माने तो उन्हें मुझ तक लाया जाए और अगर इनकार करें तो तुम उन पर हमला करके उन्हें कत्ल कर दो। जब वो करीब आएं तो घोड़ों से इनके सीने और पीठ रौंद डाले जाएं क्योंकि वो नाफरमान और जालिम हैं। अगर तुमने मेरी हदायत पर अमल किया तो तुम्हें बहादुरों जैसा अज्र मिलेगा, वरना जो फरमाबरदार न बने वो फौज से अलहदा करके शमर के हवाले करो। जब ये फरमान उमर के सामने रखा गया तो उसने गुस्से में शमर से कहा, अल्लाह तुझे बर्बाद करे, तुमने मेरे सामने क्या ला दिया? और शमर को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया कि उसने इब्न ज़ियाद को सुलह कबूल करने से बाज रखा। उमर ने कहा कि ये सारा मामला जो दुरुस्त हो सकता था तुमने ख़राब कर दिया और उसका ख्याल था कि हुसैन कभी गुलामी और इताअत इख्तियार ना करेंगे क्योंकि हुसैन फातेह खैबर हज़रत अली करमुल्लाह वजहा की औलाद हैं और उनके साथ उनका ख़ानदान और लोग हैं। शमर ने आखिर में पूछा, तुम्हारी क्या रज़ा है? उमर, जिसे शोहरत व अनफुआने इज़्ज़त की ख्वाहिश ने जकड़ा हुआ था, उसने ऐलान किया कि वो हुक्म अमीर की तामील करेगा। जब इब्न ज़ियाद ने उमर बिन साद को अपना हुक्मनामा लिखकर शमर को सौंपा था, उसी वक्त कूफा का एक मुअज़्ज़िज़ फ़र्द अब्दुल्ला बिन अबू महल इब्न ज़ियाद के यहाँ हाजिर था। उनके ख़ानदान में एक औरत उम्मुल नबीन बिनते हिज़ाम भी थीं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने अपने निकाह में लाया था। इन्हीं के बतन से अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान पैदा हुए थे। अब्दुल्ला बिन अबू महल ने इब्न ज़ियाद से दरख्वास्त की कि मेरी फूफी के बेटों को अमान दे दीजिए। इब्न ज़ियाद ने अमान का फरमान जारी करके वो तहरीर शमर के हवाले कर दी। जब शमर करबला पहुंचा तो वो इमाम हुसैन की जगह पर गया और अब्बास बिन अली और उनके भाइयों को बुलाया। शमर ने उनसे कहा कि तुम चारों के लिए अमान है। इस पर उन्होंने सख्त अंदाज में जवाब दिया, अल्लाह तुम पर और तुम्हारी अमान पर लानत करे कि तुम प्यारे रसूल की औलाद के लिए अमान नहीं मांग सकते। शमर ने इस गुफ्तगू का कोई मुनासिब जवाब न दिया और वापस चला गया।
चूंकि इमाम हुसैन ने इब्ने ज़ियाद के हुक्म से वहां से रवाना होने से इनकार कर दिया था, इसलिए शमर लश्कर लेकर वापस आया ताकि मैदान जंग इख्तियार किया जाए। इस मौके पर हुसैन के लश्कर की तरफ से जुबैर बिन कैस ने आगे बढ़कर कहा कि हम अभी तक भाई भाई हैं और दीन इस्लाम की खातिर मुत्तहद हैं। जुबैर ने शमर और अहले लश्कर से इल्तिमास की कि पहले समझौता और सुलह के रास्ते आजमा लिए जाएं या कम से कम खून रेजी से बचने की कोशिश हो। जुबैर ने वाज़ेह किया कि अगर तुम नवासा रसूल की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम खुदा के खौफ की बिना पर इनके कत्ल के मुत्तकिब न बनो। जुबैर ने एक अमली तजवीज़ भी पेश की। बेहतर यही है कि इमाम हुसैन और यजीद के नुमाइंदे आपस में मामला तय कर लें, चूंकि दोनों तरफ कुरैशी अनासिर हैं, मुमकिन है मामला बातचीत से सुलझ जाए। इस अपील पर शमर मुश्ताइल हुआ और उसने जुबैर की बात पर सख्त रद्द अमल दिया, यहाँ तक कि एक तीर भी दागा और सख्त कलमात कह दिए। जुबैर ने कुरैशी रिश्ता और इंसाफ की बिना पर रहम मुआफ़ की अपील जारी रखी, मगर वाक़या आगे बढ़ गया। आशूरा के दिन इमाम हुसैन ने अपने असहाब को लड़ाई के लिए तैयार किया और फिर नमाज अदा फरमाई। इस वक्त आपके साथ चंद सवार और 40 प्यादे थे। उमर बिन साद भी अपनी फौज के साथ मैदान कारजार में आ गया। इमाम ने ज़ुहैर बिन कैस को मेमना पर और हबीब बिन मजहर को मिस्रा पर मुकर्रर किया और अपना झंडा भाई अब्बास बिन अली को दिया। आपने अपने अहले कार इस अंदाज से तरतीब दिए कि अहले बैत के खैमे उनके अक़ब में महफूज रहें। रात के वक्त आपने खैमों के पीछे ज़मीन खुदवा कर एक तवील खंदक बनवाई, जो बाद अज़ा एक खुश्क नहर सी बन गई। ये एहतियात इसीलिए की गई थी कि पीछे से हमला मुमकिन न रहे। आपने हुक्म दिया कि लकड़ियां और शाखें जमा करके उस खंदक में भर दें और उन्हें आग लगा दें। जब लश्कर दुश्मन ने जलती हुई लकड़ियों और बुलंद शोलों को देखा तो शमर लईन फरियाद भरकर इमाम से बोला, तुमने तो कयामत से पहले ही जन्नम का सामान कर लिया। इमाम ने फरमाया कि जलने का हक तो तुम पर सबसे ज्यादा है। अहले हक की तरफ से एक बुजुर्ग कुलबी नामी बहादुरी से लड़ते हुए कारी ज़र्ब खाकर शहीद हो गए। जब वो दम तोड़ रहे थे तो उनकी बीवी बाहर आईं, उनके चेहरे से गर्दो गुबार साफ किया और कहा, तुम्हें जन्नत मुबारक हो। ये मंजर देखकर शमर ने अपने गुलाम रुस्तम को हुक्म दिया कि जाकर इस औरत को भी उसके शौहर के पास भेज दो। रुस्तम आकर इस औरत को इस सख्ती से मारा कि वो जख्म तसव्वुर में दम तोड़ गईं। फिर शमर मैदान में आगे बढ़ता हुआ हजरत इमाम के खैमों तक पहुंचा ताकि अहले बैत को जानो मकान समेत जला जाले। औरतें और बच्चे चीख उठे और भागने लगे। इमाम ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ शमर, तू मेरे अहले बैत को जलाता है, अल्लाह तुझे आग में जला दे। कुछ लोगों ने शिमर की इस वहशियाना हरकत की मजम्मत की। मसलन हमीद बिन मुस्लिम ने कहा कि ये अमल हरगिज मुनासिब नहीं। शैथ बिन नबी रईस कूफा ने भी शिमर को उस फेल से बाज रखने की कोशिश की। तब जाकर वो आर्जी तौर पर रुक गया। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बेशतर अजीज व अकरबा शहीद हो गए और वो अकेले व तन्हा मैदान कारजार में बाकी रह गए तो दुश्मनों ने उन पर हर तरफ से हमले शुरू कर दिए। इमाम ने दिफा व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये हिकमत अमली इख्तियार की कि एक मरतबा दाएं जानिब के हमलावरों पर हमला करके उन्हें भगा देते और फिर बाएं जानिब जाकर दुश्मन का मुकाबला फरमाते। यजीदी लश्कर के सिपाहियों ने खुद इकरार किया कि वो एक ऐसे फर्द के मुकाबले में जो बिल्कुल बेयारो मददगार था, इतने मरबूत, पुरजोश, दलेर और बाहिम्मत शख्स को नहीं देखा था जिस तरह इमाम एक फर्द वाहिद के तौर पर अपने आप को मैदान में साबित कर रहे थे। इमाम हुसैन जब यक्का व तन्हा रह गए तो दुश्मन हर तरफ से टूट पड़ा, मगर आप शेर की तरह सफ़ों को चीरते जाते थे। जब कभी दाएं जानिब तखल्लुल पैदा होता वहां हमला करके दुश्मनों को भगा देते और फिर बाएं तरफ बढ़ जाते। आपने फरमाया, खुदा की कसम, तुम मेरे बाद किसी ऐसे बंदे को कत्ल न कर सकोगे जिसका खून तुम पर मेरी शहादत से ज्यादा कहरे इलाही नाजिल करे। यकीनन मेरा रब वो अजीम ज़ात है जो तुमसे ऐसा इंतकाम लेगा जिसका तुम गुमान भी न कर सकोगे। तवील जंग के बाद जब आप थककर जमीन पर बैठ गए तो आपके जिस्म अथर पर 67 जख्म मौजूद थे। दुश्मन चाहता तो एक वार में आपको शहीद कर सकता था, मगर हर कोई दूसरे के आगे से छिप रहा था और चाहता था कि कत्ल की नापाक जुर्म खुद ना करे। आखिरकार शिमर में ललकार कर कहा, किस इंतजार में हो,
इस शख्स को ख़त्म क्यों नहीं कर देते। यूं चारों तरफ से हमला हुआ और इमाम हुसैन रियाज़ फिरदौस में जा पहुंचे। इसके बाद शिमर अपनी जमात के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास गया, जो बीमारी के बायस मैदान जंग में शरीक न हो सके थे। शिमर चाहता था कि उन्हें भी शहीद कर दे, मगर कूफी रईस हमीद बिन मुस्लिम और फिर खुद उमर बिन साद ने उसे रोका। यूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे ताकि सिलसिलाए इमामत बाकी रहे। जब करबला के बाद मुख्तार सक़फ़ी ने अहले बैत के कातिलों का ताक़ुब शुरू किया तो उसने अपने ग़ुलाम ज़रबी को शिमर बिन ज़िलजौशन की तलाश में भेजा। एक रिवायत के मुताबिक शिमर कूफा से भाग निकला और दरियाए फ़रात के किनारे एक गांव में पनाह लेने की कोशिश करने लगा। उसने एक देहाती को ख़त दिया कि इस ख़त को बसरा ले जाए और वहाँ के हाकिम मुसाब बिन ज़ुबैर, जो सैयदा सकीना के शौहर और इमाम हुसैन के दामाद थे, उन्हें पहुँचा दे ताकि वो उसे अपनी हिफाजत में ले लें। लेकिन वो ख़त रास्ते में मुख्तार के कारिंदे अबू अमरा और उसके साथी अब्दुर्रहमान बिन अबू कनूद के हाथ लग गया। ये लोग घोड़ों पर सवार होकर शिमर के ताक़ुब में निकले। जब शिमर को आहट मिली तो उसने नेज़ा फिर तलवार संभाल कर रज़िया अशार पढ़ते हुए मुकाबला किया, लेकिन मुख्तार के जांबाजों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार अब्दुर्रहमान बिन अबू कनूद ने ऐसा कारीवार किया कि शिमर ज़मीन पर गिर पड़ा और वहीं जहन्नुम रसीद हुआ। उसकी लाश को गड्ढे में डालकर कुत्तों की ग़िज़ा बना दिया गया ताकि ये मलून जिसने अहले बैत को सताया था ज़िल्लत के साथ दुनिया से रुखसत हो। यूं तारीख ने गवाही दी कि इमाम हुसैन ने सर दे दिया मगर हक को बुलंद रखा, और शिमर जैसे बदबख्त अंजामेकार ज़िल्लत और रुसवाई के साथ हलाक हुए। यूं शिमर अपनी ज़िल्लत और रुसवाई के साथ इबरत का निशान बन गया। करबला का सहरा जल रहा था। तपती धूप, रेत के जर्रे जैसे दहकते अंगारे और हवा में तलवारों और खून की बू। घोड़ों के सुम रेत को रौंद रहे थे और तेज धूप में हर शय थक कर झुक गई थी। ऐसे आलम में इमाम हुसैन और उनके जानिसार आखिरी सांसों तक अपने अज़्म पर कायम थे, मगर लश्कर यजीद बेरहम था। हर तरफ से तलवारों का सैलाब था। जब करबला के खूनरेज मार्के में इमाम हुसैन जख्मों से चूर चूर थे और निढाल हो गए तो यजीदी लश्कर ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। जख्मों से तो पहले ही निढाल हो रहे थे। ज़रा इब्न शरीक तमीमी ने आपके बाएं हाथ और दोष मुबारक पर तलवार से वार किया। इसके बाद सब लोग आपके पास से हट गए। इस वक्त जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यह हालत थी कि कभी तो खड़े हो जाते थे और कभी मुंह के बल गिर पड़ते थे। ऐसी हालत में सिनान बिन अनस लईन ने आप पर नेज़े का वार किया और आप जमीन पर गिर पड़े। अब सिनान ने अपने रफीक कार खौली इब्न यजीद से कहा कि अब तुम वार करके सर को तन से जुदा कर दो। उसने चाहा कि ऐसा करे, मगर ज़ौफ़ और कपकपी की वजह से अपने नापाक मकसद में कामयाब न हुआ। आखिर सिनान ने खुद घोड़े से उतरकर आपको शरबत शहादत पिलाया और आपका सर मुबारक काट कर खौली के हाथ में दे दिया। हजरत इमाम हुसैन की जान लेने में जिन अशकिया ने सबसे ज्यादा सरगर्मी दिखाई वो सब के सब शम्र लईन के कूफी चेले चांटे थे। इस क़यामत खेज हादसे के बाद यजीदी सिपाहियों ने सिनान से कहा, तुमने हुसैन की जान लेकर सबसे बड़े खतरनाक अरब को कत्ल किया है। अब तुम अपने अमीर के पास जाकर इनाम तलब करो। वो जाकर उमर इब्न साद के खैमे के दरवाजे पर बुलंद आवाज से ये शेर पढ़ने लगा। तर्जुमा, मेरी रिकाब को सोने और चांदी से भर दो, क्योंकि मैंने एक नामवर सरदान को कत्ल किया है। मैंने ऐसे शख्स की जान ली है जो लिहाजे मादर व पिदर और बाएतबारे हस्ब व नसब बेहतरीन शख्स था। उमर इब्न साद ने पहरेदारों से कहा कि इसको मेरे पास लाओ। जब वो उमर के सामने गया तो उमर ने उसे एक लकड़ी मारकर भगा दिया और कहा, तू दीवाना है जो ऐसी बहकी हुई बातें करता है। आखिर जब मुख्तार ने मुकातिलीन इमाम हुसैन को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू किया तो ये बसरा की तरफ भाग गया। फिर मालूम नहीं इसका क्या हश्र हुआ। मुख्तार ने इसके मकान को मुनहदिम करा दिया। खौली इब्न यजीद हजरत इमाम हुसैन पर कातिलाना हमले करने से पहले आपके 3 भाइयों जाफर इब्न अली, अब्दुल्ला बिन अली और उस्मान अली को जामे शहादत पिला चुका था। इन तीनों की वालदा उम्मुल बनीन कूफा ही की रहने वाली थी। यही खौली इमाम हुसैन का सर मुबारक करबला से अपने हमराह कूफा लाया था।
खौली लईन सर मुबारक को लिए हुए कसर इमारत में पहुंचा तो कसर को बंद पाकर अपने घर चला आया और सर को एक बुलंद मकाम पर रखकर अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ और अपनी बीवी अलीयूफ बिनते मालिक जो हजर मौत की रहने वाली थी कहने लगा, मैं तेरे लिए हमेशा की दौलतमंदी लाया हूँ, ये देख हुसैन का सर तेरे घर में रखा हुआ है। उसने कहा, बदबख्त डूब मर, लोग तो सोना चांदी लाए हैं और तू इब्ने रसूलुल्लाह का सर लाया है। कसम खुदा की, अब मेरा और तेरा सर दोनों एक मकान में जमा नहीं हो सकते। इस नेक सीरत खातून का बयान है कि उस वक्त एक नूर आसमान की तरफ से इमाम हुसैन के सर की तरफ आ रहा था और एक सफ़ेद परिंदा इसके गिर्द मंडलाता दिखाई दे रहा था। जब मुख्तार ने अपने सिलसिलादारों गिर में अपने आदमी खौली इब्ने यजीद के पकड़ने को भेजे तो वो रूपोश हो गया। मुख्तार के आदमी उसको ढूंढते हुए उसके मकान पर पहुंचे। उसकी बीवी जो उसी वक्त से उसकी दुश्मन हो गई थी जब वो हजरत हुसैन का सर मुबारक अपने घर में लाया था, उनसे पूछने लगी, तुम लोग क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? उसने जबान से तो लाइल्मी जाहिर की मगर हाथ के इशारे से उसके छुपने की जगह बता दी। वो उस जगह पहुंचे और देखा कि वो अपने सर पर एक टोकरा रखे बैठा है। वो उसे बाहर खींच लाए। मुख्तार उस वक्त कूफा में एक जगह चहलकदमी कर रहा था। उस वक्त इब्ने कामिल भी उसके साथ था। इतने में एक कासिद ने आकर इतला दी कि खौली गिरफ्तार हो गया है। मुख्तार वहां पहुंचा और हुक्म दिया कि इसको इसके घर वालों के सामने लाकर कत्ल कर दो और फिर आग में जला दो। चुनाचे इस हुक्म की तामील हुई और जब तक इसकी लाश जलकर खाकस्तर न हो गई मुख्तार वहीं ठहरा रहा। हुसैन इब्ने नुमैर कूफा के महकमा पुलिस का अफसर आला था। जब हजरत इमाम हुसैन की आमद थी तो इब्ने ज़ियाद ने उसे करबला की यजीदी फौज के ज़रापूश सवारों का भी अफसर बना दिया। उसकी शकावत का अंदाजा इस वाकया से हो सकता है कि एक मर्तबा नमाज का वक्त करीब आया तो अबू समामा साइदी इमाम हुसैन की खिदमत में अर्ज पैरा हुए, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, ए इब्ने रसूल, मेरी ख्वाहिश है कि खुदाए ताला से ऐसी हालत में मिलूं कि मैंने उस वक्त की नमाज अदा कर ली हो। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुमने खुदा को याद किया है, खुदा तुमको मुसल्लियों और जाकिरों के जुमरा में दाखिल करे। हाँ, अब नमाज का वक्त शुरू है, मगर जरा जाकर फरीक मुकाबिल से कह दो कि थोड़ी देर के लिए हमला आवरी से रुक जाएं ताकि हम नमाज अदा कर लें। हुसैन इब्ने नुमैर ने पुकार कर कहा, तुम्हारी नमाज कबूल ना होगी। हबीब इब्ने मुजाहिर ने जो इमाम हुसैन के जान इसारों में थे जवाब दिया, लो गधे, तू समझता है कि आले रसूल की नमाज कबूल ना होगी और तेरी कबूल हो जाएगी। ये सुनकर हुसैन इब्ने नुमैर ने उन पर हमला किया। हबीब ने आगे बढ़कर उसके घोड़े के सुम पर तलवार मार दी। हुसैन इब्ने नुमैर लड़खड़ा कर गिरा मगर उसके साथियों ने उसे बचा लिया और शायद इसी रोज का वाकया है कि इमाम हुसैन पर तशनगी ने गलबा किया। आप पानी पीने के लिए दरियाए फरात पर गए और खुदाए कुद्दूस की हम्दो सना के बाद कहा, इलाही, मैं तेरे पास इस सुलूक की शिकायत करता हूँ जो तेरे नबी के नवासे से रवा रखा जा रहा है। इलाही, इन जालिमों को चुन चुन कर हलाक कर। लेकिन एक रिवायत में यह है कि जिस शख्स ने आपके चेहरा मुनव्वर पर तीर मारा था वो हुसैन बिन नुमैर न था बल्कि कबीला बिन आबान का एक शख्स था। खुदा ने उसे प्यास के मर्ज में मुब्तला कर दिया कि कभी पानी से सैर न होता था। हर वक्त यही कहता था कि मुझे पानी दो, पानी हो। प्यास ने मुझे मार डाला। कुछ अरसा तक इस अजाब में मुब्तला रहा। आखिर उसका पेट ऊंट के शिकम की तरह फूल गया और वो हलाक हो गया। हुसैन बिन नुमैर भी इब्ने ज़ियाद के साथ जंगे मौसिल में कत्ल हुआ था। उसका हमला आवर शरीक बिन जदीर तगलबी था। वो हुसैन बिन नुमैर को इब्ने ज़ियाद समझकर चिमट गया और आवाज दी कि जल्द आओ और इब्ने ज़ियाद को हलाक कर दो। चुनाचे मुख्तार की फौज के आदमी पहुंचे और इब्ने नुमैर पर हमला करके उसे खाक खलाक पर लिटवा दिया। मरा इब्ने अब्दी, जिसने इमाम हुसैन के साहिबजादा अली अकबर को जामे शहादत पिलाया था, जनाब अली अकबर ने मैदान जहां से तानी में आकर भी रज्जिया अशार ही शुरू किए थे कि मरा ने उन पर नेज़े का वार किया। वो गिर गए और आदा ने भड़कर उनको तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर डाला। इमाम हुसैन इनकी हालत देखकर कहने लगे, ऐ मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुझे कत्ल किया है खुदा उनको कत्ल करे। बेटा, तेरे बाद दुनिया एक चटेल मैदान है। फिर इमाम हुसैन अपने चंद जानिसारों को साथ लेकर उनकी तरफ गए और फरमाया कि अपने भाई को उठा ले चलो। हकीम इब्ने तुफैल की जान से तानी के बाद मुख्तार ने हजरत अली अकबर के कातिल मरा इब्ने अब्दी की तलब में आदमी भेजे।
ये बड़ा जंगजू आदमी था। मुख्तार के आदमियों ने जाकर उसका मकान घेर लिया। वो अपने तेज रव घोड़े पर सवार होकर हाथ में नेजा लिए हुए उनका मुकाबला करने के लिए बरामद हुआ और हमला अवरों पर नेजाजनी करता रहा, मगर उसके नेजे से किसी को गजन न पहुंचा। इब्ने कामिल ने तलवार से उस पर वार किए, वो उनको अपने बाएं हाथ से रोकता गया। इस तरह तलवार उसके हाथ में उतर गई। ये देखकर उसने घोड़े को एड़ लगाई। घोड़ा उसे इस तेजी से ले उड़ा कि ये लोग उसे किसी तरह न पा सके। यहाँ से वो बसरा की तरफ भाग गया, मगर उसके बाद उसका हाथ हमेशा के लिए शल और बेकार हो गया। करबला का मैदान एक खौफनाक खून आलूद खामोशी में डूबा हुआ था। हवा में धूल और खून की महक थी। घोड़ों के सुम रेत को रौंद रहे थे और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। हर तरफ खौफ और सन्नाटे की लहर थी, मगर दिलों में एक गमगीन अज़्म भी मौजूद था। एक ऐसी कुर्बानी की तैयारी जो तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए नक्श हो जाएगी। ये कहानी है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिपाहियों, अंसार और यजीदी अशकिया के दरमियान होने वाली एक ऐसे मारके की जिसने बहादुरी, वफादारी और जुल्म की इंतहा को सबके सामने बेनकाब कर दिया। ये वो दास्तान है जिसमें ज़ैद इब्ने रिकाद, अमर बिन हज्जाज और अब्दुर्रहमान अजली के किरदार, उनके अमाल और उनके अंजाम की तल्ख हकीकतें सामने आईं। करबला के खून में भीगे दिनों से कुछ ही वक्त पहले कूफा की फिजा जुल्म और जबर से भरी हुई थी। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रजी अल्लाह अन्हु, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई और उनके खास नुमाइंदे थे, उनको इब्ने ज़ियाद ने निहायत बेरहमी से कसरे अमारत की छत पर शहीद करवा दिया। कूफा की गलियों में खौफ और खामोशी के साए फैल गए। उनके दो नन्हे बेटे जो अपने वालिद के साथ थे, इब्ने ज़ियाद के जुल्म के तीरों का निशाना बनकर दुनिया से चले गए। इन मासूम जानों की शहादत ने मजलूमियत की तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा कर दिया। उनके तीसरे साहिबजादे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, जो उम्र में ज़रा बड़े थे, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमराह मौजूद थे। वो भी अपने वालिद की तरह जुर्रत और ईमान के पैकर थे, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक जालिम ज़ैद इब्ने रिकाद जंबानी, जिसके दिल में न रहम बाकी था न खौफ खुदा, ने इस बहादुर नौजवान को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। ज़ैद अक्सर फ़ख्र से कहा करता, मैंने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम को तीर मारा था। वो इस बात पर नाज करता जैसे कोई कारनामा अंजाम दिया हो। वो लोगों को बताया करता कि जब उसने पहला तीर चलाया तो अब्दुल्ला ने अपनी पेशानी बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, मगर ज़ैद का तीर ऐसा संगदिल था कि उसने हाथ और पेशानी दोनों को एक साथ छेद डाला। हाथ पेशानी के साथ जम गया, जैसे बदन और दर्द एक ही वजूद बन गए हों। अब्दुल्ला ने खून में तर चेहरे के साथ आसमान की तरफ देखा और थरथराती हुई आवाज में दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, जिस तरह इन जालिमों ने हमें कत्ल किया है, तू भी उन्हें वैसा ही अंजाम दिखा। ये अल्फाज हवा में गूंजते रहे और ज़ैद ने एक और तीर चलाया। वो तीर अब्दुल्ला की जिंदगी का आखिरी बाब बन गया। नौजवान जमीन पर गिरा और करबला की रेत ने एक और मासूम शहीद का लहू अपने दामन में जज्ब कर लिया। ज़ैद मकतूल के करीब आया। उसने पहला तीर आसानी से निकाल लिया, मगर जो पैकान पेशानी में पैवस्त था वो जैसे जुल्म की एक मोहर बन चुका था। उसने खींचा, जोर लगाया, मगर पैकान अपनी जगह से ना हिला। लकड़ी का हिस्सा उसके हाथ में रह गया, मगर धात का सिरा गोश्त में ऐसे धंसा रहा जैसे जमीन ने निगल लिया हो। जब मुख्तार सक़फ़ी को इस जुल्म की खबर मिली तो उसने ज़ैद की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। पुलिस अफसर इब्ने कामिल अपने सिपाहियों के साथ रवाना हुआ। ज़ैद ने उन्हें आता देखा तो तलवार उठा ली, जैसे अपने अंजाम से लड़ने की एक आखिरी नाकाम कोशिश हो, मगर इब्ने कामिल ने हुक्म दिया, तलवार या नेज़ा न चलाओ, बस तीरों और पत्थरों से इसका खात्मा करो। चुनाचे आसमान से जैसे बारिश नहीं, बदले की बौछार होने लगी। पत्थरों और तीरों की ज़रबों ने ज़ैद को लहू में नहला दिया। वो ज़मीन पर गिरा, सांसें टूटती और लरसती रह गईं। इब्ने कामिल ने कहा, अगर कुछ जान बाकी है तो इसे बाहर ले आओ। जब ज़ैद को घसीट कर लाया गया तो वो नीम जां था, चेहरे पर खौफ, आंखों में पशेमानी और लबों पर खामोशी की एक लकीर। इब्ने कामिल ने उसे जिंदा आग में झोंक दिया। करबला के बाद ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं थी, ये एक जालिम अंजाम की दस्तक थी जो आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बनने जा रही थी। उसके बाद अब बारी थी एक और जालिम की, जिसकी सफाकी और गुरूर भी बेमिसाल थे। अमरो इब्ने हज्जाज को अपने अमीरुल मोमिनीन यजीद की वफादारी पर बड़ा गुरूर था। करबला के एक मार्के में
जब दुश्मन हाथ बहात लड़ाई के लिए आगे बढ़े तो उनके फौजी एक के बाद एक शिकस्त खा गए। ये मंजर देखकर अमरो इब्ने हज्जाज, जो खुद उनका अफसर था, बुलंद आवाज में यजीदी लश्कर से बोला, ऐ शहसवारो, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम किसके सामने खड़े हो? तुम ऐसे लोगों से बर्तरी चाहते हो जो मौत के ख्वाहां हैं। खबरदार, आइंदा कोई शख्स इनसे बराह रास्त मुकाबला न करे, क्योंकि ये मुट्ठी भर हैं। तुम तो इन पर सिर्फ पत्थर और तीर बरसाओ तो भी इन्हें खत्म कर सकते हो। अहले कूफा, अपनी इताअत और जमात को बरकरार रखो और इमाम हुसैन के कत्ल में किसी तरह का तरद्दुद न करो। इमाम हुसैन ने यह सुनकर फरमाया, ए अमरो इब्ने हज्जाज, क्या तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो? क्या हमने दीन में रुख न डाला है या तुमने? वल्लाह, जब तुम्हारी रूहें कब्ज की जाएंगी और दुनिया से हसरत और यास के साथ कूच करोगे, तब तुम पर हकीकत वाज़े हो जाएगी। अमरो इब्ने हज्जाज अशकिया के पानी की बंदिश पर मामूर था और उसका लश्कर भी उसके ज़ेरे हुक्म था। जब इमाम हुसैन और उनके अंसार शदीद प्यास से तड़पने लगे तो आपने अपने भाई हजरत अब्बास को बुलाया। 30 सवार, कुछ प्यादे और मशकें उनके साथ दी गईं ताकि पानी के लिए रवाना हों। ये काफिला रात के वक्त दरिया पर पहुंचा। सबसे आगे जनाब नाफे इब्ने हिलाल थे। अमरो इब्ने हज्जाज ने पुकारा, कौन है, क्यों आए हो? नाफे ने कहा, पानी पीने आए हैं। अमरो ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें पानी पीने की इजाज़त नहीं, हम यहाँ इसीलिए हैं कि पानी ना पीने दें। प्यादों ने कहा कि जाएं और पानी भरें। प्यादे दौड़ पड़े और सब ने अपनी अपनी मशकें भरनी। तब अमरो इब्ने हज्जाज अपनी फौज के साथ हमला कर गया, लेकिन हजरत अब्बास और उनके सवारों ने दुश्मन पर जवाबी हमला करके सबका मुंह फेर दिया। अब्बास ने प्यादों से कहा कि वो जल्दी से वापस जाएं और खुद दुश्मन को रोकने के लिए वहां ठहरे। इतने में अमरो दोबारा हमला करने लगा। तब बिलाल ने एक यजीदी पर नेज़ा वार करके उसे हलाक कर दिया और अंसार हुसैन भरी हुई मशकें लेकर सही और सलामत अपने खेमों तक पहुंच गए। बाद में मुख्तार सक़फ़ी ने अमरो इब्ने हज्जाज की गिरफ्तारी के लिए एहलकार भेजे। खबर अमरो तक पहुंची तो वो घोड़े पर सवार होकर निस्सा की तरफ फरार हो गया और क़यामत तक के लिए गायब हो गया। कुछ रिवायतें ये भी बयान करती हैं कि मुख्तार के लोग उसे शदीद तशनगी की हालत में पकड़ गए और बादज़ा उसे हलाक करके सर कलम कर दिया। करबला के मैदान में दर्द और इम्तिहान का सिलसिला जारी रहा। हर लम्हा एक नई कहानी, हर सांस में कुर्बानी का सबक। इसी फिजा में एक और वाक़या घट गया जिसने वफा, बहादुरी और जुल्म के हुदूद को दोबारा वाज़ी किया। ये दास्तान है मुस्लिम बिन औसजा की शहादत और इस कत्ल में मुलव्विस अब्दुर्रहमान अजली या मजली की वारदात की। मुस्लिम बिन औसजा वही बहादुर सिपाही थे जो हजरत मुस्लिम बिन उकैल के ज़माने से कूफा में उनके साथ खड़े रहे। जब खबर पहुंची कि इमाम हुसैन करबला में आए हैं तो वो फौरन उनके हमरकाब हो गए। एक महाज़े लड़ाई के दौरान जब अमर इब्ने हज्जाज ने दरिया की तरफ से हमला किया, टक्कर जारी रही। झड़प के बाद मंजर साफ हुआ तो मुस्लिम बिन औसजा जख्मों से चूर जमीन पर पड़े मिले। अभी उनकी सांस में कुछ रमक बाकी थी कि इमाम हुसैन उनके पास गए और शफकत से कहा, मुस्लिम, खुदा तुझ पर रहम करे। फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर नज़दीक आए और आजिज़ी व मोहब्बत के अल्फाज कहे, ए इब्ने औसजा, मुझे तुम्हारे कत्ल का बहुत कलक है, मगर तुमको बहिश्ते मुबारक नसीब हो। मुस्लिम ने धीरे से जवाब दिया, खुदा तुमको भी खैर व नेकी दे, बस इन पर अपनी जान फिदा करना। ये आखिरी हिदायत थी और फिर वो रूह दारे जिस्म से जुदा हो गई। उसकी कनीज़ ने नाम लेकर बीनो फगान किया और करबला की हवा में एक खामोश मगर दिल चीर देने वाली नवीद बह गई। जालिमों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर कुछ यजीदी अफसरान जैसे शैतस इब्न रिबई ने इसे देखकर कहा, वल्लाह, ये वही मुस्लिम बिन औसजा था जिसने पहले भी 6 दुश्मनों को मौत के घाट उतारा। बाद में मुख्तार सक़फ़ी ने फैसला किया कि इस जुल्म का हिसाब लिया जाए। उसने हुक्म दिया कि अब्दुर्रहमान अजली और दीगर यजीदी कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने उन्हें पकड़कर हाजिर किया और मुख्तार ने कहा, आज खुदा ने तुमसे इंतकाम लेने की ताकत दी है। फिर सबकी गर्दनें मार दी गईं और ये लोग अपने आमाल के बोझ के साथ तारीख के इबरत कदे से रवाना हुए। करबला की इस दास्तान में हर कुर्बानी, हर इम्तिहान और हर इंतकाम की कहानी एक नए सबक के साथ जिंदगी में ढल रही थी। मुख्तार और उनके सिपाही किस तरह बाकी यजीदी अशकिया से हिसाब लेते हैं। करबला के बाद के मैदान में अदल व इंसाफ के नए रंग कैसे नमूदार होते हैं और किस तरह शहादत और कुर्बानी की दास्तानें आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन जाती हैं।
यूं करबला की दास्तान एक मुसलसल रवा नदी की तरह बहती रहती है, जिसके हर मोड़ पर इंसाफ, बहादुरी और कुर्बानी के नए सबक मिलते हैं। कूफा की गलियों में खामोशी छाई थी, मगर इस खामोशी के पीछे इंसाफ की एक तेज आंधी चल रही थी। वो जमाना था जब जुल्म करने वाले अपने ही साये से खौफ खाते थे, क्योंकि मुख्तार सकफी के हुक्म से एक एक कातिल करबला अपने अंजाम के करीब पहुंच रहा था। जिन हाथों ने आले रसूल पर जुल्म किया था, अब वही हाथ लर्ज रहे थे। कोई जजीरा को भागने की कोशिश में था, कोई रात के अंधेरे में छुपा बैठा, मगर इंसाफ की तलवार हर तरफ गर्दिश कर रही थी। मलिक इब्ने नसीर बदी वही शकी और बेबाक इंसान था जिसके पास हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की टोपी पहनने की हद तक बेहुरमती पहुंची। शहादत के वो अलमनाक दिन जब सुबह की रोशनी आहिस्तगी से मैदान कारजार पर फैल रही थी, इमाम हुसैन तन्हा, बेसहारा और पुरसकून खड़े रहे। कोई ना सरपट हमला करता, न किसी ने कतई तौर पर अपना नफ्स कुर्बान करने की हिम्मत दिखाई। सुबह का साज खामोशियों और खौफ के साथ गुजरता गया। कूफा के वही लोग जो दिनों पहले नारों में आगे थे, अब झिझक कर पीठ फेर लेते थे और उस अजीम शख्सियत को नुकसान पहुंचाकर अपने कांधों पर एक अजीम बेहुरमती का बोझ उठाने से कतराते थे। हर बार जब कोई कूफी हजरत की तरफ बढ़ता तो अंदर से कसौटी, खौफ और शकूक ने उसे वापस भगा दिया। गोया उनके दिलों में शर्म भी और बुज़दिली भी एक साथ जागी हुई थी। मगर बिलाखिर कबीला बनु कंदा का एक जंगजू मलिक इब्ने नसीर बदी बीच मैदान आया। उसने बगैर कसरत सोच के अपनी तलवार उठाई और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुबारक सर पर वार किया। इसी वार से टोपी कट कर गिर पड़ी, सर से खून बहने लगा और वो टोपी खून से लथपथ हो गई। मंजर ऐसा था कि देखने वाला कांप उठता। इमाम हुसैन ने जुल्म पर गमगीन मगर मुस्तहकम लहजे में बद्दुआ की, कहा, खुदा जालिमों के साथ तेरा हश्र करे। फिर सादगी और अज़मत रूह की मिसाल देते हुए आपने खून से नहाया हुआ वो टोपी अपने सर से उतार कर बेतकल्लफी से ज़मीन पर फेंक दिया और दूसरी टोपी पहन ली। ये अमल उसके अंदर के बुलंद मकाम सब्र और वक़ार का मुरक्का था, जो ज़ख्मी जिस्म के बावजूद ईमान की मजबूती को ज़ाहिर करता था। बदी ने जो टोपी गिरती देखी उसे उठाया, घर ले जाकर धोने लगा। गोया वो उसको इफ्तिखार या शिकारे जंग समझ बैठा था। मगर जब उसकी बीवी ने यह मंजर देखा तो उसके दिल में जो खिफत और रसवाई जागी, उसने बदी को ना सिर्फ झड़का बल्कि सख्त लहजे में कहा कि क्या तू इब्ने रसूल का छिना हुआ लिबास अपने घर में लाएगा? और इसी नदामत के तासुर ने बदी को घर से दफा कर दिया। इस वाक़े ने उसकी रुसवाई को अवामी कर दिया। इसके बाद बदी की जिंदगी मौत और जिंदगी के दरमियान कसम पुरसी में गुजर गई। वो सख्त मुफलिस और कल्लाश होकर रह गया, सारी उम्र फक्र फाका का शिकार रहा। और जब मुख्तार ने कूफा में अदल इंतकाम के नाम पर कार्रवाइयाँ शुरू की तो बदी और उसके चंद हमराह अशकिया कादसिया की तरफ फरार हो गए। मुख्तार सकफी ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दीं और मालिक इब्न अमरू नामी अफसर को उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। वो उन्हें तलाश करके पकड़ लाया और इशा के वक्त मुख्तार के सामने पेश कर दिया। मंजर मुकाबला संगीन और फैसला कुन था। मुख्तार ने सख्त लहजे में उनसे मुखातिब होकर कहा, ए अल्लाह और उसके रसूल और उसकी किताब और आले रसूल के दुश्मनों, हुसैन बिन अली कहाँ हैं? मेरे पास हुसैन को लाओ। तुमने इस बुजुर्ग हस्ती को कत्ल किया जिस पर नमाज में दुरूद और सलाम भेजने का हुक्म था। इन कैदियों ने पछतावे या बहाने के इम्तिजाज में कहा, अल्लाह अमीर पर रहम करे, हमें जबरन उनके मुकाबले पर भेजा गया था, आप हम पर एहसान करें और छोड़ दें। मगर मुख्तार के सवालात तेज और बेबाक थे। तुमने अपने नबी के नवासे पर एहसान क्यों ना किया? उस पर रहम क्यों ना आया? उन्हें पानी क्यों ना दिया? ये मलामत उनके अंदर छुपी इंसानी वजदान को भी झंझोड़ देती थी। फिर मुख्तार ने बराह रास्त बदी की तरफ देखा और पूछा, तूने इमाम हुसैन की टोपी उतारी थी? अब्दुल्ला इब्ने कामिल ने उसकी निशानदेही करते हुए कहा, हाँ, ये यही शख्स है। इस निशानदेही के बाद मुख्तार ने सख्त सज़ा का हुक्म दिया कि बदी के दोनों हाथ और दोनों पांव कता कर दिए जाएं ताकि वो तड़प तड़प कर जिंदगी की कैद से छुट जाए। ये हुक्म नाफिज हुआ और बदी इसी दर्दनाक हालत में और खून बहते बहते हलाक हो गया। इसी अलहदगी और इबरत के साथ उसके दो साथी भी जंगे शमशीर के सपुर्द कर दिए गए और उन्हें करारे गुनाह के मुताबिक अंजाम दिखाया गया। ये वाक़या न सिर्फ एक फ़र्द की सज़ा का बयान है बल्कि इस अहद की अखलाकी बौखलाहट, बुज़दली और फिर अदालत की आंख खुलने का कास भी है। जहाँ बज़ाहिर फ़तह और शिकस्त, लिबास और अलामतें अहम थीं, मगर असल में इंसानियत, शराफत और इंसान कामिल के मकाम की बेकदरी का गमगीन किस्सा भी इसमें पोशीदा है। मालिक इब्ने नुसैर बदी और उसके साथियों की इबरतनाक मौत के बाद मुख्तार सकफी ने कूफा में अदलो इंतकाम का सिलसिला मजीद तेज कर दिया।
उसने अपने अफसर पुलिस अब्दुल्ला इब्ने कामिल को हुक्म दिया कि हकीम इब्ने तुफैल ताई को भी गिरफ्तार किया जाए। ये वही बदनसीब शख्स था जिसने मक्तले करबला में हजरत अब्बास अलम बरदार के लिबास व असलहा पर कब्जा किया था और यहाँ तक कि इमाम हुसैन पर तीरंदाजी भी की थी। हकीम इब्ने तुफैल अक्सर फख्र से कहा करता था, मेरा तीर हुसैन के पाजामे में अटक कर रह गया था, उन्हें कोई गजंद ना पहुंचा। इब्ने कामिल ने हुक्म के मुताबिक उसे गिरफ्तार किया और मुख्तार के दरबार की तरफ ले चला। उन्हीं दिनों हजरत अदी इब्ने हातिम ताई, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और अपने कबीले के एक निहायत मुअज़्ज़िज़ बुजुर्ग थे, कूफा में मौजूद थे। चूंकि हकीम उन्हीं का हम कौम था, उसके अकरबा फरियाद रसी के लिए हजरत अदी रजी अल्लाह अन्हु के पास जा पहुंचे। वो रोते हुए कस्में खा खा कर कहने लगे, हकीम बेगुनाह है, उसने अहले बैत के खिलाफ किसी अमल में हिस्सा नहीं लिया। हजरत अदी उनकी बातों से मुतासिर हुए और सिफारिश करने पर आमादा हो गए। पहले वो अब्दुल्ला इब्ने कामिल से मिले और नरमी से कहा, अगर मुमकिन हो तो इस नौजवान को छोड़ दो, मुझे यकीन है ये कसूरवार नहीं। इब्ने कामिल ने मुअद्दबाना जवाब दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, अमीर मुख्तार ही इसके बारे में फैसला कर सकते हैं। हजरत अदी ने फरमाया, अच्छा तो फिर मैं खुद मुख्तार से मुलाकात करता हूँ। दरहकीकत इससे पहले भी मुख्तार ने हजरत अदी की सिफारिश पर कई कैदियों को रिहा किया था, मगर उनमें किसी पर बराह रास्त कत्ले अहले बैत का इल्जाम नहीं था। इधर जब हजरत अदी कसरे इमारत की तरफ रवाना हुए तो शहर के बाज शियाने अली रजी अल्लाह अन्हु, जिनके दिलों में करबला का गम अभी ताज़ा था, इब्ने कामिल के पास आए और कहने लगे, हमें अंदेशा है कि अमीर मुख्तार इस खबीस के मुतल्लिक हजरत अदी की सिफारिश कबूल कर लेंगे, हालांकि इसका जुर्म यकीनी है। अगर आप इजाजत दें तो हम इसे रिहाई से पहले ही अंजाम सजा तक पहुंचा दें। इब्ने कामिल ने मुख्तसर कहा, अगर तुम्हें यकीन है कि वो मुजरिम है तो जो मुनासिब समझो कर गुजरो। चुनाचे उन लोगों ने हकीम को, जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे, एक सुनसान जगह पर खड़ा किया। उनमें से एक ने कहा, तूने हजरत अब्बास अलम बरदार के कपड़े उतारे थे, हम तेरे कपड़े उतारते हैं। यूं उस बदबख्त को बरहना कर दिया गया। फिर दूसरे ने कहा, तूने इमाम हुसैन पर एक तीर चलाया था, हम भी तुझे सिर्फ एक तीर मारेंगे। और इसके बाद एक तीर उसके जिस्म में इस अंदाज से पैवस्त किया गया कि वही तीर पैगाम मर्ग बन गया। कहा जाता है कि वो तीर खास साख्त का था, उसके अंदर कई नोकदार पैकान छुपे थे जो जिस्म में घुसते ही फैल गए और उस बदनसीब को वहीं खाक पर गिरा दिया। उधर हजरत अदी कसरे इमारत पहुंचे तो मुख्तार ने एहतराम से उनका इस्तकबाल किया, अपने पास बिठाया और उनके आने का मकसद पूछा। हजरत अदी ने नरमी से कहा, मैं अपने कबीले के एक शख्स हकीम बिन तुफैल के लिए सिफारिश करने आया हूँ। मुझे यकीन दिलाया गया है कि वो बेगुनाह है और उसने अहले बैत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। मुख्तार ने संजीदा लहजे में कहा, ए अदी, क्या आप पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता होकर इस अम्र को रवा देखते हैं कि इमाम हुसैन के कातिलों के लिए मुझसे माफ़ी तलब फरमाए हैं? हजरत अदी ने फरमाया, मुझे इसके बारे में गलत इतला दी गई होगी, मेरे इल्म में तो वो बेकसूर है। मुख्तार ने सुकून से कहा, अगर आप फरमाते हैं तो मैं आपकी खातिर उसे छोड़ देता हूँ। अभी ये बात हो ही रही थी कि इब्ने कामिल वहां पहुंच गया। मुख्तार ने पूछा, हकीम का क्या बना? इब्ने कामिल ने सर झुकाकर कहा, अमीर शियों ने उसे कत्ल कर डाला। मुख्तार ने अफसोस से कहा, मेरे पास लाए बगैर उसे क्यों मार दिया गया? देखो जनाब अदी उसकी सिफारिश के लिए तशरीफ लाए हैं और वो ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी सिफारिश कबूल की जा सकती है। इब्ने कामिल ने जवाब दिया, मैं मजबूर था अमीर, लोगों ने किसी तरह न माना और वो अपने गुस्से पर काबू न रख सके। ये सुनकर मुख्तार खामोश हो गया, मगर फिजा में गमो इबरत की एक घनी लहर फैल गई। तारीख के रावी लिखते हैं कि उस वक्त मुख्तार ने एक जुमला कहा जो कूफा के लिए सबक बन गया, जो कौम जुल्म पर खामोश रहती है वो इंसाफ का हक भी खो देती है। मुख्तार सक़फ़ी के इंतकामी फ़ैसलों का सिलसिला रवां रहा और शहर कूफा में इंसाफ की तेज़ लहर कई मकामात पर नमूदार हुई। इसी ज़िम्ने में एक और संगीन वारदात का तज़किरा लाजिम है, उस्मान इब्ने खालिद जहनी का अंजाम और फिर उमर इब्ने सुबह सैदावी की हलाकत।
एक रोज मुख्तार ने अपने अफसर पुलिस अब्दुल्ला इब्ने कामिल को हुक्म दिया कि उस्मान इब्ने खालिद जाहनी और बिश्र इब्ने सोत काबजी को गिरफ्तार किया जाए। ये दोनों वही लोग थे जो मक्तले करबला में बहादुरों के साथ लड़े थे और एक मोड़ पर अब्दुर्रहमान इब्ने अकील को शहीद करके उनके लिबास व हथियार कब्जा में ले चुके थे। इब्ने कामिल असर के वक्त बड़ी तादाद के साथ बनी विवाहमान की मस्जिद पहुंचा और वहां लोगों से गुस्से भरकर कहा, अगर उस्मान इब्ने खालिद तुम्हारे हवाले ना आया तो मैं तुम सबकी गर्दन मार दूंगा। बनी विवाहमान ने इल्तिमास की कि उन्हें फुर्सत दी जाए ताकि वो तलाश करें। तलाश शुरू हुई क्योंकि मुख्तार की तरफ से कातिलाने अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ कार्रवाइयों का जोर बरकरार था। उस्मान और बिश्र कूफा छोड़कर जजीरे की तरफ भागने की कोशिश में थे। बिलाखिर बनी वहमान ने उन्हें एक इहाते में पकड़ लिया और उन्हें अब्दुल्ला इब्ने कामिल के हवाले कर दिया। इब्ने कामिल ने उन्हें लेकर रवाना होते हुए कहा, खुदा का शुक्र कि मुझे ये काबू मिल गया। जब काफिला बनी हुए जाद के कुएं के पास पहुंचा तो उन दोनों को गर्दन जदनी कर दी गई। लाशें वापस ले जाकर मुख्तार को इत्तला दी गई। मुख्तार ने हुक्म दिया कि वापस जाकर इन लाशों को नजर आतिश किया जाए और जब तक न जल जाएं इनकी दफनाने से रोका जाए। यही हुक्म नाफिज किया गया। लाशें जलाई गईं और ये इबरतनाक अंजाम मंजर आम पर आ गया। इसी तरह एक और कैदी उमर इब्ने सुबे सैदावी का किस्सा भी दिल खराश था। ये वही शख्स था जिसने अब्दुल्ला इब्ने अबी तालिब को शहीद किया था। रात के एक हिस्से में जब शहर सो रहा था, पुलिस उसके मकान पर पहुंची। वो छत पर बेखबर सो रहा था और तलवार उसके पास पड़ी थी। पुलिस ने अचानक हमला करके पहले तलवार पर कब्जा किया और फिर उसको गिरफ्तार कर लिया। जब उसे मालूम हुआ कि वो पुलिस के हाथों हैं तो उसने अफसोस भर कर कहा, अल्लाह इस तलवार का बुरा करे, ये मुझे कितनी नज़दीक थी मगर अब कितनी दूर हो गई। उसे मुख्तार के सामने पेश किया गया। रात कसरे इमारत में वो कैद कर दिया गया और सुबह दरबार आम में उसको हाजिर किया गया। लोगों की आंखों के सामने सलासिल व अगलाल में जकड़ा हुआ उसने नापाक तकब्बुर के साथ मुख्तार को मुखातिब होकर कहा, ऐ काफिर व फाजिर, अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो तुम जानते कि मैं कमजोर नहीं। मेरा दिल चाहता था कि मुझे किसी दूसरे के हाथ से मारा जाए क्योंकि मैं तुम्हें बदतरीन खलाइक समझता हूँ। फिर उसने पुलिस अफसर अब्दुल्ला इब्ने कामिल की जानिब हाथ बढ़ाकर तमांचा रसीद किया। इब्ने कामिल हंसा, उसे मजबूती से पकड़कर मुख्तार से कहा, यह शख्स दावा करता है कि उसने आले मोहम्मद को जख्मी किया है और उन पर नेज़ाबाजी की है। आप इसके मुताल्लिक क्या हुक्म फरमाते हैं? मुख्तार ने सरी हुक्म दिया कि इसे नेज़े मार मार कर हलाक किया जाए। यह हुक्म फौरन नाफिज किया गया और उमर इब्ने सुबह की जिंदगी इसी दर्दनाक अंजाम पर ख़त्म हुई। मुख्तार ने इसी तरह अहले बैत अलैहिस्सलाम के कातिलों और उनके मावनीन का कला कमा जारी रखा। तारीख़ की रवायात इस बाब में वसी हैं। जो हजरात मजीद मुख्तार के कारनामों और उस दौर की तफसीलात जानना चाहें, उन्हें मशहूर तारीख़ी मसादिर जैसे तारीख़ इब्ने जरीर तबरी और तारीख़ कामिल इब्ने असीर से रुजू करने की हिदायत की जाती है। यूं एक एक करके वो तमाम चेहरे जो करबला के खून से रंगीन थे अंजाम को पहुँचे। मुख्तार सक़फ़ी की अदालत में कोई सिफारिश, कोई रिश्ता, कोई फरीब कारगर ना हुआ। हर जालिम ने वही जायका चखा जो उसने अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चखाया था। कूफा की फिजाओं में अभी भी उन चीखों की गूंज बाकी थी जो कभी मजलूमों के खून से दबी हुई थीं, मगर आज इंसाफ की ललकार बनकर उभरी। तारीख के सफ़हात पर ये लम्हे हमेशा के लिए सब्त हो गए कि जुल्म चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अंजाम में अदले खुदा की तलवार ज़रूर गिरती है। करबला का बदला लिया गया, मगर ये बदला सिर्फ इंतकाम नहीं था, ये ऐलान था कि हक हमेशा जिंदा रहता है और बातिल मिट जाता है।